Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing great and your preparation is going wonderfully. Myself, Ishfaq Afzal from Zoology Department from Emerge classes. So, beta, आज के session में we are going to talk about some of the important questions from the topic human genetics, जो आपके board exam में पूछे जा सकते हैं. So, first, let me give the overview, the topics from where you can expect the questions. The first topic is going to be the sex determination. And the second part जो examiner का बेटा हमेशा favorite रहता है, that's human genetic disorders, and third is the pedigree analysis. So without wasting the time, let's proceed in today's session. So बेटा जो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा आज के सेशन का, that's what you mean by, what you understand by sex determination, explain different methods of sex determination with examples. So we know बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के पेरेंट्स दिखने को मिलते हैं. वन वी कॉल एज द मेल पेरेंट एंड सेकंड वी कॉल एज व्हाट, फीमेल पेरेंट. सो मेल पेरेंट क्या करता है? मेल पेरेंट बेटा मेल गैमेट्स बनाते हैं एंड फीमेल पेरेंट्स क्या बनाते हैं? फीमेल गैमेट्स. Female gametes and male gametes. Now what are the factors? What are the factors बेटा जो एक living organism को male बनाते हैं, and what are the factors which are responsible for making the female parent or offspring or living organism? ये सारे factors की study को बेटा collectively हम कहते हैं what? Sex determination. So in simple ways, in simple language, what we mean by sex determination, तो बेटा मैं sex determination की simple सी definition लिखूंगा. It is the sex determination. It is the study of factors which are responsible for the development of male or female organism. So in other words बेटा मैं ये भी कह सकता हूं कि sex determination simply मतलब होता है कि उन factors को understand करना which are responsible for the expression of a sex in a living organism. So this simply means sex determination. And next बेटा हमसे यहां पे जो पूछा गया था कि what are the different methods or mechanisms by which we can determine the sex of a living organism. So बेटा मैंने बात की थी यहां पे कि जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स बेटा डिफरेंट तरह के हो सकते हैं. फैक्टर्स which are responsible for the sex determination, those can be environmental factors, those can be genetic factors which are responsible in determining sex of a living organism. Now बेटा इसी बेस के ऊपर कि कौन सा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म और ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर सी बात, बेस्ड अपॉन दैट व्हाट वी डू, हम इस सेक्स डिटरमिनेशन मेथड को जो है हम इसे डिफरेंट टाइप्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड जो आता है बेटा, सबसे पहला मेथड जो हमारे पास आता है, दैट वी कॉल्ड एज एनवायरमेंटल method of sex determination. Environmental method of sex determination. Environmental method of sex determination. अब इस environmental method of sex determination में जो आपने पॉइंट याद रखना है, the factors बेटा which are actually the environmental factors. For example मैं बात करूं टेम्परेचर की, it's responsible or it's going to determine कि एक living organism male बनेगा या female बनेगा. For example अगर मैं बेटा बात करूं क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल और टर्टल्स में बेटा this environmental method of sex डिटरमिनेशन दिखने को मिलता है. अब इस क्रोकोडाइल में याद रखना बेटा, जब ये एक फर्टिलाइज्ड एग को ले करती है, ये फर्टिलाइज्ड एग जो है, अगर बेटा टेम्परेचर इसके एनवायरनमेंट का ज्यादा हुआ, आई मीन से कि वार्म वाटर्स में ये जो फर्टिलाइज्ड एग होगा ये डेवलप होगा इनटू मेल क्रोकोडाइल. अगर बेटा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लो हुआ, आई मीन से इन लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट्स, ये जो आपका फर्टिलाइज्ड एग होता है, इट डेवलप्स इनटू व्हाट, फीमेल.
it develops into what? Female crocodile. So we can say कि इस तरह की sex determination में कौन सा factor is responsible in determining the sex of organism? That's crocodile. That's going to be the what? Temperature. That's going to be what? Temperature. Clear? So this is the first method of sex determination we have. Next method of sex determination we are having is termed as haplodiploidy type of sex determination. Haplodiploidy type of sex determination. हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें ये किन में पाया जाता है, तो याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट है बेटा कि हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले यहां आपने याद रखना है दिस मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन व्हाट? हनीबीज. इज फाउंड इन व्हाट? हनीबीज. अब हनीबी की कॉलोनी को बेटा जब हम देखते हैं, हनीबीज की कॉलोनी में हमें दो तरह के हनीबीज दिखने को मिलते हैं. वन इज द मेल एंड अनदर इज द फीमेल. Another is what? Female. And more importantly, जो मेल्स होते हैं बेटा they are haploid, while as females those are what? Diploid. मेल में यूजुअली क्रोमोसोम नंबर 16 होते हैं, फीमेल डिप्लॉयड है, तो इसमें आपका क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू कितना? 32. अब इस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को बेटा हम हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इसीलिए कहते हैं बिकॉज बेटा यहां पे जो मेल्स होते हैं वो आपके होते हैं हैप्लॉइड, वो होते हैं आपके हैप्लॉइड, वाइल एज जो फीमेल्स होती है दोज आर व्हाट? फीमेल्स आर डिप्लॉइड. सो दैट्स द रीजन कि इस मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को बेटा हमने नाम दिया है क्या? हमने नाम दिया है व्हाट? हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. अब इंपॉर्टेंटली याद रखने वाली बात कि जो हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इस मेथड में बेटा जो सेक्स एक हनीबी का होता है दैट्स डिटरमाइंड आइदर बिफोर फर्टिलाइजेशन. इसमें सेक्स इज डिटरमाइंड आइदर बिफोर फर्टिलाइजेशन और इसमें बेटा सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर व्हाट? फर्टिलाइजेशन. आइदर बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है बेटा कि किस तरीके से हम हनीबीज का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं. कब आपका एक हनीबी मेल में डेवलप होगा और कब ये फीमेल में डेवलप होगा दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन व्हाट? कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब कौन सा हनीबी बनेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तब किस तरह का हनीबी बनेगा. सो क्वेश्चन को बेटा चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. यहां पे मैंने ली बेटा एक फीमेल हनीबी, यहां पे आई विल टेक द फीमेल हनीबी जो कि डिप्लॉयड होती है. दैट मींस इसमें आपका क्रोमोसोम नंबर जो होता है दैट्स 32 और सिंपली मैं लिख सकता हूं 2n. और यहां पे मैं लूंगा मेल हनीबी, यहां पे दिस इज व्हाट योर मेल हनीबी. और मेल हनीबीज क्या होते हैं? आपके हैप्लॉइड. सो बेटा जिस टाइम पे यहां पे गैमीटोजेनेसिस होगा, जिस टाइम पे यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ये फीमेल जो है बेटा इट अंडरगोज गैमीटोजेनेसिस बाय मियोसिस बिकॉज डिप्लॉयड होती है. इट अंडरगोज गैमीटोजेनेसिस बाय मियोसिस एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड एग्स. वेल एज बेटे जिस टाइम पे ये मेल स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमीटोजेनेसिस करता है इट फॉर्म्स व्हाट? हैप्लॉइड स्पर्म्स. नाउ यहां पे इंपॉर्टेंटली याद रखनी है अगर इस एग को बेटा आपके स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो यहां पे जो जाइगोट बनेगा दैट विल बी डिप्लॉयड. और ये डिप्लॉयड जो आपका जाइगोट है ऑलवेज रिमेंबर बेटे दैट इट इज गोइंग टू डेवलप इनटू फीमेल हनीबी. It will develop into what? Female honeybee. While as बेटा यहां पे इंपॉर्टेंटली याद रखना है ये वाला एग जो है ये एग बेटा अगर ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एक हनीबी में, वो हनीबी बेटा बनेगी विदाउट व्हाट? फर्टिलाइजेशन. और ये हनीबी जो बनती है विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड.
सो हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में हम क्या कहते हैं कि जो फीमेल्स आपकी होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, और जो मेल्स होते हैं, जो मेल हनीबीज होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं. सो ऑन दैट बेस हम इस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. अब यहां पे देखें, ये वाली जो फीमेल हनीबी है, ये बेटा यहां पे बनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही बेटा होता है व्हाट, गैमेटोजेनेसिस फॉलोड बाय व्हाट, फर्टिलाइजेशन. सो क्या बेटा मैं यहां पे ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि इन हनीबीज जो फीमेल्स होती हैं दोज आर फॉर्मड बाय व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाइल एज बेटा ये वाले जो आपके मेल हनीबीज होते हैं दीज आर फॉर्मड विदाउट द फर्टिलाइजेशन. एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक एग बेटा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू व्हाट, एन ऑफस्प्रिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज टर्म्ड एज व्हाट, पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस. तो याद रखने वाली बात यह हुई कि अब हनीबीज में हम सेक्स बेटा किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फीमेल हनीबी बनेगी. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, कहने का मतलब बेटा यहां पे पार्थिनोजेनेसिस होगी, तब जाके जो हनीबी होगी ये बेटा किस में डेवलप होगी, इनटू मेल. क्लियर सी बात है. नव यहां पे आपने बेटे याद रखनी है कि जो आपकी हनीबीज होती हैं, जब हम बात करते हैं फीमेल हनीबीज की, दोज आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ क्वीन एंड अनदर इज व्हाट, वर्कर. सो ये जो जाइगोट यहां पे बना, ये जाइगोट बेटा यहां पे जो बना, ये या तो क्वीन में डेवलप होगा या फिर बेटा ये वर्कर हनीबी में डेवलप होगा. तो इस प्रकार की, इस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन को बेटा जो हनीबीज में दिखने को मिलती है, वही सिंपल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. अब नाम हैप्लोडिप्लॉइडी क्यों पड़ा? बिकॉज जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं. सो दिस वाज द सेकंड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन which is found in the living organisms. And the third and the important method of sex determination beta is termed as chromosomal method of sex determination. Chromosomal method of sex determination. अगर बेटा हम देखेंगे इन मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब बेटा यहां पे ये हुआ कि जो यहां पे सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, दैट इज एक्चुअली क्रोमोसोम. अब क्रोमोसोम्स बेटा जो एनिमल किंगडम है, एनिमल्स में दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. एक को बेटा हम कहते हैं ऑटोसोम और एक को हम कहते हैं व्हाट, सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम. ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स. So in this type of sex determination, chromosomal method of sex determination, it's actually these allosomes are sex chromosomes which are responsible for determining the sex of a living organism. Determining the sex of what living organism. So that's the reason हम इस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन को कभी कभार एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं. व्हाई? बिकॉज इसमें जो क्रोमोसोम्स बेटा इन्वॉल्व होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, दोज आर एक्चुअली अवर सेक्स क्रोमोसोम्स. नाउ बेटा पॉइंट टू बी रिमेंबर कि एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के आपको सेक्स क्रोमोसोम्स दिखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में बेटा हमें दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स दिखने को मिलते हैं, क्रोमोसोम नंबर X एंड क्रोमोसोम नंबर Y. सिमिलरली बाकी एनिमल्स भी हैं बेटा, कुछ में तो Z टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स दिखने को मिलते हैं और कुछ में W टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स दिखने को मिलते हैं. Got my point? That means based upon कि कौन सा क्रोमोसोम is responsible for determining the sex of what an organism. हमारे पास बेटा ये जो chromosomal method of sex determination होता है, it's of different types based upon the type of chromosome which is involved in the sex determination of living organism. क्लियर सी बात. लेकिन बेटा यहां पे एक स्टार पॉइंट याद रखेंगे कि क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट.
इसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेक्स होता है दैट्स डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ व्हाट फर्टिलाइजेशन एंड द टाइप of chromosome which is determining the sex of chromosome is termed as what? Allosome. But simply we are going now into the different types of what this chromosomal method of sex determination. Types of मैं simple अब लिखूंगा types of allosomic method of sex determination. So basically बेटा ये जो methods या types होते हैं these are actually what? Four types. चार तरह के होते हैं based upon the chromosome which is involved in the sex determination. First we are having is termed as XY type of sex determination. Second we are having is termed as XX0 method of sex determination. Third we are having is ZZ type of sex determination. And the fourth we are having is Z0 ZZ type of what? Sex determination. Z0 ZZ type of what? Sex determination. Clear सी बात? तो that means बेटा ये वाला method of sex determination जिन living organisms में आपको दिखने को मिलेगा उनमें आपको दो तरह की sex chromosomes दिखने को मिले. One is the XX chromosome and another is what? Y chromosome. क्लियर सी बात. ये वाला मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखने को मिलेगा उसमें केवल बेटा आपको एक ही तरह का एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम दिखने को मिलता है दैट्स एक्स क्रोमोसोम. वायलेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको दो तरह के और इसमें भी आपको एक तरह का सेक्स क्रोमोसोम दिखने को मिलता है. Now next important point is that कि सर हमें बताइए कि ये XY type या बाकी methods of sex determination हमें किन किन living organisms में दिखने में मिलते हैं. So बेटा ये वाला method of sex determination की अगर हम बात करेंगे it's found in humans and Drosophila. एनसीईआरटी के ऊपर भी बेटा ये पॉइंट मेंशन करके है. दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जिसमें आपको एक ही तरह का सेक्स डिटरमिनेशन दिखने को मिलता है बेटा इट्स फाउंड इन द ग्रॉस सुपर. दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इट इज फाउंड इन व्हाट? इट्स फाउंड इन एम्फीबियंस, मतलब ZWZZ एम्फीबियंस, reptiles, more importantly birds and fish. And the fourth type of sex determination, that's Z type of sex determination, it's found beta in what? It's found in butterfly. ये तो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं. इन सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा बेटा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको ऑटोसोम्स भी दिखने को मिलेंगे लेकिन जिनका कोई भी रोल सेक्स डिटरमिनेशन में नहीं होता. नो बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि इस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में अगर मैं बात करूं यहां पे आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने जहन में याद रखना है कि इसमें बेटा जो फीमेल्स जो होती है वो एक ही तरह का गैमीट बनाएंगी तो इस वाले मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में हम कहेंगे सर दैट फीमेल्स आर होमोगैमेटिक व्हाइल एज बेटा यहां पे देखें ये मेल है इसमें दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं तो हम कहेंगे बेटा कि इसमें मेल जो होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं व्हाइल एज फीमेल्स क्या होती है? होमोगैमेटिक. बिकॉज फीमेल्स जो होती हैं वो दो तरह के गैमीट्स बनाएंगी और जो मेल्स होते हैं बेटा फीमेल्स एक तरह का गैमीट बनाएंगी और मेल जो हैं वो दो तरह के गैमेट्स बनाएंगी. सो इस मेथड में आपने याद रखना फीमेल्स आर होमोगैमेटिक एंड मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक.
वाई? बिकॉज मेल के पास बेटा आप देख सकते हैं क्लियरली हमें दो तरह के, दो डिफरेंट टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं. नो टॉकिंग बेटा अबाउट सेकंड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, दैट्स XX नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन. इसमें बेटा आप देखें ये फीमेल है, ये फीमेल है. फीमेल में बेटा आपको दो आइडेंटिकल टाइप ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, वाइल एज बेटा मेल जो है इसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है. तो हम कहेंगे बेटा इस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में भी जब हम फीमेल्स को देखते हैं, जब हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल्स यहां पे भी आपको दिखने को मिलती हैं कैसी? होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक. वाइल एज मेल्स जो हैं, मेल्स देखें बेटा जब गैमेटोजेनेसिस करेंगे एक स्पर्म में एक एक्स क्रोमोसोम आएगा और जो दूसरा स्पर्म बनेगा दैट विल बी डिवाइड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. तो हम कहेंगे ना बेटा कि इस तरह या इन एनिमल्स में जो मेल है वो भी दो प्रकार के आपके सेक्स गैमीट्स बनाते हैं, एक जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा एंड वन विच इज डिवाइड ऑफ फुट सेक्स क्रोमोसोम. तो आई कैन राइट हियर दैट इट इज ऑल्सो, इस कंडीशन में मेल जो है वो भी कैसा होता है? हेटेरोगैमेटिक. बेटा जब हम इस मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन को देखते हैं, इसमें ZW इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स फीमेल इंडिविजुअल एंड ZZ बेटा इट रिप्रेजेंट्स मेल इंडिविजुअल. सो जब फीमेल की बात करते हैं, फीमेल बेटा दो प्रकार के गैमीट्स बनाएगी, एक में आ जाएगा Z क्रोमोसोम, सेकंड आ जाएगा W क्रोमोसोम. और जो मेल है बेटा ये जब स्पर्म्स बनाएगा, दोनों स्पर्म्स में आपको एक ही तरह का क्या देखने को मिलेगा? सेक्स क्रोमोसोम. सो बेटा कैन आई से इट लाइक दिस कि इस तरह की सेक्स डिटरमिनेशन में जो फीमेल होती है, फीमेल बेटा होती है हेटेरोगैमेटिक, हे होती है हेटेरोगैमेटिक, वाइल एज मेल बेटा जो होते हैं, मेल्स होते हैं होमोगैमेटिक. मेल्स आर व्हाट? होमोगैमेटिक. मेल्स आर व्हाट? होमोगैमेटिक. सेम बेटा चौथी कंडीशन को जब देखेंगे, ये फीमेल है, फीमेल में बेटा आपको क्या देखने को मिलता है? एक ही सेक्स क्रोमोसोम. और ये जो आपका मेल है इसमें दो आइडेंटिकल Z क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं. तो मैं बेटा यहां पे भी कहूंगा कि इस तरह की सेक्स डिटरमिनेशन में भी आपको जो फीमेल होती है, जो फीमेल होती है दैट इज हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक. वाइल एज मेल्स जो होते हैं, मेल्स कैसे होते हैं? मेल्स होते हैं होमोगैमेटिक. मतलब कि ये जो गैमीट्स बनाएंगे दोनों में या सब गैमीट्स में आपको ZZ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा. सो बेटा एक NCERT की इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दो मेथड्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जिसमें आपके फीमेल्स होमोगैमेटिक होते हैं और मेल्स क्या होते हैं? हेटेरोगैमेटिक. सो इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन बेटा it's actually the male which determines the sex of an individual. Got my point? So that's the reason हम इस तरह की sex determination को बेटा इन दोनों types of sex determination को कहते हैं male, या this mechanism is termed as male heterogametic mechanism of sex determination. वायलेंस इन दो में जब हम देखते हैं, इन दो में बेटा देखो मेल्स तो होमोगैमेटिक हैं, फीमेल्स बेटा यहां पे हेटेरोगैमेटिक हैं. सो दिस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज टर्म्ड एज व्हाट? इट इज टर्म्ड एज बेटे फीमेल गैमेटिक मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? सेक्स डिटरमिनेशन. अब बेटा इन सारे का मैकेनिज्म मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा. सो फॉर योर इजी कन्वीनियंस आई विल टेक हियर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कि किस तरह से ये सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं ह्यूमंस में, और आई कैन से आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. सो सेम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दीज अदर मैकेनिज्म्स एज वेल. सो बेटा यहां पे ये मान के चलें, ये एक फीमेल पेरेंट है, यहां पे ये एक फीमेल पेरेंट है, यहां पे दिस इज अ फीमेल पेरेंट एंड दिस इज फॉर एग्जांपल मेल पेरेंट. क्लियर सी बात है. सो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ये भी गैमीट्स बनाएगी, ये भी गैमीट्स बनाएंगी. लेकिन वी ऑल नो बेटा कि ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होता है, जिसमें 44 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और दो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स. दिस इज द फीमेल एंड दिस इज बेटा व्हाट? मेल. क्लियर सी बात है. सो इसमें जो होगा, लेट मी रिप्रेजेंट दिस 44 क्रोमोसोम्स एज 2A प्लस यहां पे फीमेल है तो इसमें XX क्या होगा? जीनोटाइप. ये मेल है बेटा, इसमें हो जाएगा 2A प्लस इसमें होगा XY. क्लियर सी बात
बात? बिकॉज वी नो बेटा ह्यूमंस में फीमेल्स जो होती हैं दोज आर होमोगैमेटिक, मेल्स आर व्हाट? हेटेरोगैमेटिक। क्लियर सी बात? सो जिस टाइम पे बेटा ये फीमेल गैमेटोजेनेसिस करेगी, जब ये गैमीट्स बनाएगी, इन गैमीट्स में बेटा ये मान के चले एक गैमीट बना, ये दूसरा गैमीट बना, इसमें बेटा बाय मियोसिस एक सेट ऑफ ऑटोसोम्स आएगा along with one set or one X क्रोमोसोम, इसमें एक सेट ऑटोसोम्स का और एक X क्रोमोसोम आएगा। वाले जब मेल में देखेंगे गैमेटोजेनेसिस होगी, एज मेल्स और हेटेरोगैमेटिक, ये दो प्रकार के बेटा क्या बनाएंगे? स्पर्म्स बनाएंगे। एक स्पर्म बेटा जिसमें ऑटोसोम ए होगा और इसमें होगा एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा स्पर्म बेटा जो बनेगा इसमें ऑटोसोम एक और एक यहां पे आ जाएगा आपका वाई क्रोमोसोम। गॉट माय पॉइंट? नाउ मैंने पहले ही आपको बताया कि क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में सेक्स इज डिटरमाइंड बेटा एट द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट मींस ये एग और ये एग तो क्या है? आपके आइसोगैमेटिक, मतलब ये सिमिलर हैं, इसमें भी एक सेट ऑटोसोम्स का, एक सेट ऑटोसोम्स का, एक एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम। दीज आर बेटा व्हाट? हेटेरोगैमेट्स। इसमें एक्स है तो कहेंगे हम इसे क्या कहेंगे? गाइनोस्पर्म। इसमें वाई है तो कहेंगे एंड्रोस्पर्म। दैट मींस हेटेरोगैमेटिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट? Gametes are formed. Why? Because their genetic composition is different. Now बेटा look, अगर ये वाला sperm अगर इस egg को fertilize करता है, यहां पे जो zygote बनेगा, that will be having the genetic composition as 2AAXX, एक यहां से X, एक यहां से egg का X। नाउ बेटा सिमिलरली याद रखेंगे, जिस टाइम पे एग को ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, वहां पे जो जाइगोट बेटा बनेगा, उस जाइगोट में दो सेट्स तो होंगे ऑटोसोम्स के, एक होगा एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम के अलावा बेटा इस जाइगोट में क्या होगा? वाई क्रोमोसोम। क्लियर सी बात? नो बेटा अगर हम इन दो जाइगोट्स की जेनेटिक कंपोजिशन को देखें, इसमें टू सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, आई मीन से 44 ऑटोसोम्स, इसमें भी 44 ऑटोसोम्स, इसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम, लेकिन इसमें बेटा एक एक्स क्रोमोसोम के बजाय यहां पे एक वाई क्रोमोसोम है। क्लियर सी बात? एंड वी नो बेटा कि ये जो वाई क्रोमोसोम होता है, इसके ऊपर जो जीन्स होते हैं, उन जीन्स को बेटा हम कहते हैं हॉलैंड्रिक जीन्स। हॉलैंड्रिक जीन्स। तो याद रखने वाली बात बेटे कि यहां पे ये वाला जाइगोट जो है, इट विल डेवलप इनटू व्हाट? इट विल डेवलप इनटू मेल। It will develop into male, और इसमें बेटा this zygote it will develop into what? Female individual. That means बेटा humans में जो XY type of sex determination है, X chromosome doesn't plays any role in what sex determination. Why? Because हमने यहाँ पे भी X chromosome देखा, यहाँ पे भी X chromosome देखा. So actual में बेटा the one difference between the two zygotes was that कि इसमें आपका Y chromosome था. तो इसीलिए बेटा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके नीट में, दैट कि ह्यूमंस में सेक्स इज डिटरमाइंड बाय वाई क्रोमोसोम। दैट इज वाई क्रोमोसोम इज बेटा व्हाट? वाई क्रोमोसोम इज ए स्ट्रॉन्ग सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर इन ह्यूमंस। वाई? बिकॉज इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर बेटा आपको कुछ ऐसे जीन्स रिस्पॉन्सिबल या ऐसे जीन्स दिखने को मिलते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग और कन्वर्टिंग और काजिंग द डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ दिस जाइगोट। एज अ रिजल्ट इट डेवलप्स इनटू व्हाट? मेल इंडिविजुअल। आई होप इस कॉन्सेप्ट के साथ बेटा आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। तो इस तरीके से बेटे हमने बात की अबाउट व्हाट वी टॉक्ड अबाउट व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन व्हिच आर फाउंड इन व्हाट डिफरेंट लिविंग ऑर्गन्स। फर्स्ट इज टर्म्ड एज XXXY टाइप, किन में पाया जाता है, फीमेल्स कैसी होती है, मेल्स कैसी होती हैं। देन सब्सिक्वेंटली हमने बाकी मेथड्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन भी सेम चीज देखी। क्लियर सी बात है? सो यही तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट वी मीन बाय सेक्स डिटरमिनेशन, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय सेक्स डिटरमिनेशन। सिंपली वी कैन से इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि क्या ये मेल में डेवलप होगा या फीमेल में। और नेक्स्ट वाज एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन विद एग्जांपल्स। सो विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1. Then the next question we are having is, what are genetic disorders? Mention their types with examples. Look बेटे, जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में भी डिफरेंट डिजीजेस पढ़ते हैं, हर एक डिजीज का एक पर्टिकुलर काज होता है, हर एक डिजीज का एक पर्टिकुलर रीजन या काज होता है।
क्लियर सी बात। नाउ व्हाट आर दीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स? जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेटा हम कहेंगे वो वाले डिजीजेस होती हैं, वो वाले डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका मेन रीजन जो होता है दैट इज जेनेटिक रीजन। जेनेटिक रीजन, वो वाले डिजीजेस which have got what? Genetic causes. Which have got what? Genetic causes. वो वाले डिजीजेस कहलाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब ये जेनेटिक काज बेटा क्या क्या हो सकता है? ये जेनेटिक काज दो तरीकों या दो पार्ट्स में मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तरह का कहलाता है वो वाला जेनेटिक चेंज जिसको हम कहते हैं म्यूटेशंस, जिनको हम कहते हैं म्यूटेशंस। And second cause for the genetic disorders are collectively termed as what? Chromosomal aberrations. क्रोमोसोमल एब्रिएशन। क्रोमोसोमल एब्रिएशन का बेटा मतलब होता है चेंज इन क्रोमोसोम। अब ये चेंज जो आपके क्रोमोसोम में आती है ये बेटा दो तरीकों की हो सकती है, दो टाइप्स की हो सकती है। वन, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगी, जिन चेंज को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज और मॉर्फोलॉजिकल चेंज, क्लियर सी बात। एंड सेकेंड टाइप जो हमारे सिलेबस में भी है, कभी कभार क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर कभी बेटा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो उस रीजन या उस तरह की चेंज को क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होना या क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज होना, ये वाली चेंज क्या कहलाती है? न्यूमेरिकल चेंज। So genetic disorders वो वाले disorders होते हैं which arise due to either mutations or change in the chromosome structure, I mean say deletion, addition, inversion, translocation, जिसकी वजह से आपके क्रोमोसोम का बेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। या मैं कहूंगा कि क्रोमोसोम का नंबर बेटा या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उसकी वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने की वजह से जो डिसऑर्डर्स होंगे, डिजीजेस होंगी, वो वाली डिजीजेस क्या कहलाती है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नाउ बेटा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दिस फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ जीन, ये एक जीन है मेरा, और इस जीन में वी ऑल नो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। जीन इज एक्चुअली व्हाट? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर प्रोटीन। क्लियर सी बात। सो बेटे जब इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो यहां से एक एमआरएनए, मतलब कि एक एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और इस एमआरएनए का बेटा जब ट्रांसलेशन हो जाता है तो यहां पे एक प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन बेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमारी बॉडी में कोई वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है या किसी ना किसी मेटाबॉलिक पाथवे का क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट एंजाइम। So this is going to be the function of this protein which is actually coded by this gene. Now क्या हुआ? By somehow बेटा इस जीन की जीन सीक्वेंस चेंज होगी। इस जीन की बेटा क्या चेंज होगी? जीन सीक्वेंस चेंज होगी। जीन सीक्वेंस चेंज होने का मतलब बेटा कि इसमें नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है, जो ओरिजिनल जीन में थी, वो अब चेंज हो गई है। तो जब इसमें आपकी एक चेंज आ जाती है सीक्वेंस में, तो मैं कहूंगा बेटा अब ये वाला जीन जो है ये कहलाएगा म्यूटेटेड जीन। और ये म्यूटेशंस वो वाले रीजंस जिनकी वजह से इस जीन में स्ट्रक्चरल चेंज आ गई और जिसकी वजह से हम कहेंगे ये वाला जीन जो है इट्स टर्म्ड एज म्यूटेटेड जीन। नाउ बेटे याद रखने वाली बात, जब ये म्यूटेटेड जीन बन गया तो नाउ इट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म दैट पर्टिकुलर एमआरएनए जिस एमआरएनए से हमारा ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनने वाला था। यहां पे प्रोटीन अगर बना तो प्रोटीन बनेगा, लेकिन वो होगा एबनॉर्मल प्रोटीन। एबनॉर्मल प्रोटीन होगा, या बेटा ये वाला प्रोटीन जो हमारी बॉडी को चाहिए था ये नहीं बनेगा। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, अब हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स अपीयर होने हो जाएंगे शुरू, और कुछ डिजीजेस होंगी, तो वो वाली डिजीजेस कहलाती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्लियर सी बात, फर्स्ट रीजन। सेकंड इज फॉर एग्जांपल वही नो बेटा कि हम में क्रोमोसोम नंबर जो 2n होता है दैट्स 46। अब क्या हो सकता है, ये 46 से बेटा 47 भी जा सकता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गई, या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ये क्रोमोसोम नंबर घट के 45 हो सकता, मतलब क्रोमोसोम नंबर यहां पे डिक्रीज हो गया। आई मीन से कि इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल चेंज आ रही है। क्या आ रही है? न्यूमेरिकल चेंज आ रही है।
सो इन न्यूमेरिकल चेंज की वजह से या म्यूटेशंस की वजह से जो डिजीजेस बेटा होती हैं, वो डिजीजेस इन सिंपल टर्म्स में क्या कहलाती है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर द डिसऑर्डर्स बेटा विच अराइज आइदर ड्यू टू म्यूटेशंस और ड्यू टू व्हाट? दीज न्यूमेरिकल चेंज, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा. क्लियर सी बात. देन इसी क्वेश्चन में हमें यह भी पूछा गया था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सो बेटा फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? आई एम गोइंग टू टॉक ऑन द बेस ऑफ कॉजेस. ऑन द बेस ऑफ कॉजेस यहां पे मैंने आपके साथ केवल बेटा 2 कॉजेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के डिस्कस किए. वो वाले पहले मैं लिखूंगा कि बेस्ड अपॉन द कॉज, की क्या जेनेटिक डिसऑर्डर म्यूटेशन की वजह से हो रहा है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एबरेशन की वजह से हो रहा है. वो वाले genetic disorders which arise beta due to genetic mutations which have got what? Genetic reasons, वो वाले genetic disorders बेटा कहलाते हैं Mendelian genetic disorders. Those are termed as what? Mendelian genetic disorders. While as वो वाले genetic disorders which arise due to what? Which arise due to chromosomal aberrations. I mean से या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बेटा चेंज हो जाएगा या क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा. वो वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेटा कहलाते हैं क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स. क्लियर. तो चलिए लिखते हैं, ये वो वाले डिजीजेस या डिसऑर्डर्स होते हैं which arise due to genetic mutations, which arise due to what? Genetic mutations. And we all know beta कि genetic mutations are inheritable. That means अगर आपके क्रोमोसोम के जीन के ऊपर बेटा म्यूटेशन हो गई एक पैरेंट में, ये म्यूटेशन आगे जाके अपने ऑफस्प्रिंग्स में या इस फैमिली के किसी ना किसी ऑफस्प्रिंग में ये डिजीज बेटा आगे जाके एक्सप्रेस होगी. सो आई कैन राइट हियर दैट दीज टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, दे आर इनहेरिटेबल. दे आर व्हाट? इनहेरिटेबल. मतलब कि अगर पेरेंट्स में बेटा ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, आगे जाके ये ऑफस्प्रिंग्स में इस जेनेटिक डिसऑर्डर को इनहेरिट कर सकते हैं. सो सेकंड पॉइंट. अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा मैंने अभी कहा कि दीज आर एक्चुअली इनहेरिटेबल इन नेचर. सो द गोल्डन पॉइंट और आई कैन से स्टार पॉइंट हियर इज दैट कि ये वाले जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, दे शो Mendelian pattern of inheritance, जैसा आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, Mendelian pattern of what? Inheritance. क्लियर सी बात. सो एक और पॉइंट यहीं पे फिर आ गया बेटा, जैसा कि ये आपकी प्रोजर्नी में इनहेरिट हो सकते हैं. सो अनदर स्टार पॉइंट विल बी कि इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को वी कैन ट्रेस देम मतलब वी कैन स्टडी देम बाय पेडिग्री एनालिसिस और सिंपली पेडिग्री चार्ट. क्लियर. तो ये रहे आपके मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स. नाउ यहां पे वी आर हैविंग व्हाट? क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सिंपल सी बेटा याद रखनी है कि क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंज का मतलब बेटा या तो क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होगा या तो फिर डिक्रीज होगा. इतना ही नहीं, ये आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डिलीशन, एडिशन, ट्रांसवर्शन, इन्वर्शन उसकी वजह से भी हो सकते. नाउ द रीजन बेटा यहां पे आपने याद रखना है कि ये न्यूमेरिकल चेंज आती कब है? ये न्यूमेरिकल चेंज बेटा तब आएंगी जब एक क्रोमोसोम के ये जो 2 क्रोमेटिड्स हैं, व्हेन दे फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस सेकंड. लेकिन किसमें बेटा? ड्यूरिंग oogenesis. During what? oogenesis. सर आपने यहां पे oogenesis का कॉन्सेप्ट क्यों लिया? बिकॉज बेटा ये मोस्टली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली दीज क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्लियर सी बात है, या आपके मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्लियर सी बात, इनका मेन रीजन होता है ड्यू टू एबनॉर्मलिटी विच इज लाइंग इन द फीमेल. सो यहां पे हम बात करें क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स की. सो बेटा जब ये क्रोमेटिड्स फेल हो जाएंगे सेपरेट होना, सो जिसकी वजह से अब जो गैमीट्स यहां पे बनेंगे, वो गैमीट्स क्या होंगे?
वो होंगे आपके एबनॉर्मल गैमेट्स, मतलब बेटा एक गैमेट में क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होगा और एक में क्या होगा, कम होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा आगे जाके इस इंडिविजुअल में जो इस ऐसे गैमेट के फर्टिलाइजेशन से बना विच वाज एबनॉर्मल, ही और शी इज गोइंग टू एक्सप्रेस दीज टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्लियर? सो यहां पे पॉइंट बेटा आपने नेक्स्ट याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि मोस्ट ऑफ टाइम ये वाले क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं दे आर नॉन इनहेरिटेबल। दे आर नॉन इनहेरिटेबल। सर ये क्या स्टेटमेंट आपने दिया, दे आर नॉन इनहेरिटेबल? बेटा जब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, बेटा दोस आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और हम देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट हो या क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम का पेशेंट हो, दोनों तो स्टेराइल होते हैं। सो एक रीजन बेटा कि ये वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स नॉन इनहेरिटेबल इन नेचर होते हैं इज दैट कि द पेशेंट्स हु सफर बाय दीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर स्टेराइल इन नेचर। Second explanation for this statement is that कि most of time बेटा हम देखते हैं वो वाले patients who suffer from chromosomal genetic disorders they die before attaining the puberty. That means बेटा क्या मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पे कि ये वाले जो genetic disorders होते हैं they are non-inheritable in nature. They are non-inheritable in nature. जब नॉन इनहेरिटेबल इन नेचर है दैट मींस दे डू नॉट शो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जब ये मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बेटा नहीं दिखाएंगे सो आई कैन से दे कैन बी ट्रेस्ड आउट विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। सो बेटा यहां पे मैंने डिफरेंसेस भी बताने और साथ में मेंडेलियन एज वेल एज क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर भी डिस्कस कर लिए। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में ये भी मेंशन करके था व्हाट आर देयर एग्जांपल्स। सो बेटा याद रखेंगे मेंडेलियन जेनेटिक एग्जांपल्स में आपके पास एग्जांपल आती है फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सेकंड इज द कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। Thalassemia, thalassemia, phenylketonuria, these all are the examples of what are Mendelian genetic disorders. और यहां पे बेटा जब हम examples को लेंगे मैं कहूंगा Turner syndrome, Turner syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Klinefelter syndrome, Klinefelter syndrome. These are the important examples of whatever chromosomal genetic disorders. I hope the concept is clear. So we are done with this concept कि what are genetic disorders and mention their types with examples. साथ में बेटा मैंने कुछ यहाँ पे आपके साथ इसके mechanism के बारे में भी बात की. Next, the next question we are having is define recessive genetic disorders. रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेटा याद रखेंगे वो वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं विच आर एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एक पर्सन, एक पेशेंट में रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर तब एक्सप्रेस होगा जब उस जीन के रिलेटेड जिसमें म्यूटेशन आ रही है, जब उसमें दोनों जीन्स आपके क्या होंगे, म्यूटेटेड. फॉर एन एग्जांपल आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे एग्जांपल लूंगा. आई एम हैविंग अ बेटा जीन, लेट मी से जीन ए, एंड वी ऑल नो कि एक जीन में आपको दो अलील्स दिखने को मिलते हैं. दिस इज अलील ए, दिस इज अलील 2, दिस इज फ्रॉम फादर, दिस इज फ्रॉम मदर, बिकॉज वी नो कि दो अलील्स आर प्रेजेंट ऑन व्हाट दिस, दोज आर प्रेजेंट ऑन द होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. क्लियर सी बात? सो मान के चले ये वाले जो दोनों अलील से, मतलब बेटा ये जो जीन है ये नॉर्मल है. दिस इज ए नॉर्मल, दिस इज ए नॉर्मल जीन, नॉर्मल जीन है तो ये बेटा अपनी एक्सप्रेशन दिखाएगा, मतलब ये जीन एक्सप्रेस होगा. जब ये एक्सप्रेस होगा तो हम कहेंगे कि एक फंक्शनल प्रोटीन यहां पे बनेगा और ये फंक्शनल प्रोटीन बॉडी में जाके क्या कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा या कोई मेटाबॉलिक पाथवे का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम हो सकता है. लेकिन बेटा यहीं पे फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील है दैट्स नॉर्मल, वाइल एज दूसरे क्रोमोसोम का बेटा जो अलील है उसमें जीन म्यूटेशन आ गई है.
सो जब जीन म्यूटेशन आ गई बेटा, तो याद रखेंगे म्यूटेटेड जीन या म्यूटेटेड एलील का मतलब कि ये एलील का बेस सीक्वेंस या रीडिंग फ्रेम चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से अब इस एलील की एक्सप्रेशन नहीं होगी। जब एक्सप्रेशन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर की। लेकिन इस जीनोटाइप में बेटा एक तो नॉर्मल एलील है, एक है आपका म्यूटेटेड, तो हम कहेंगे कि इस इंडिविजुअल में ये रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर आपका एक्सप्रेस नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए heterozygous dominant condition, and this is what it is, homozygous dominant condition. While as बेटे जब मैं तीसरी कंडीशन की बात करूंगा, दिस फॉर एग्जाम्पल इज द कंडीशन जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं आपके, या मैं इस तरीके से कहता हूं कि पूरा होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर बेटा एक पर्टिकुलर जीन जो है, क्लियर सी बात, उसके दोनों एलील्स क्या हो गए हैं, म्यूटेट हो गए। तो म्यूटेट हो गए हैं बेटा, तो मैं कहूंगा ये वाली कंडीशन है नाउ होमोजाइगस, दिस इज टर्म्ड एज होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। रिसेसिव कंडीशन बेटा मैंने क्यों कहा? बिकॉज यहां पे ये दोनों एलील्स म्यूटेट हो गए हैं, तो इनकी बेटा जीन एक्सप्रेशन नहीं होगी। जब जीन एक्सप्रेशन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन यहां पे नहीं बनेगा। प्रोटीन यहां पे जब नहीं बनेगा, सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर प्रोटीन, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये वाला पेशेंट बेटा, ये वाला इंडिविजुअल जो है, ही इज गोइंग टू सफर फ्रॉम अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इस प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स। वी कॉल देम एज व्हाट? रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली एंड ओनली इन व्हाट? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। सर इस वाली कंडीशन में भी तो एक म्यूटेटेड एलील है, लेकिन बेटा एक नॉर्मल एलील भी तो साथ में है जो वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम या इस वाली कंडीशन को, या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें एक एलील क्या होगा, नॉर्मल होगा, एक म्यूटेटेड होगा, इनको बेटा हम जेनेटिक्स में कहते हैं कैरियर्स। बिकॉज ये वाले इंडिविजुअल्स अपना ये म्यूटेटेड एलील जो है ये अपने प्रोजर्नी में इनहेरिट कर सकते हैं, और ये वाले इंडिविजुअल्स तो कहलाएंगे नॉर्मल। क्लियर सी बात है। चलिए जी, अब हम यहां पे एक और स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो आपके रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, दीज रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये बेटा मोस्टली दो तरह के होते हैं। These are mostly of what? Two types. They are mostly of what? Two types. Now on what basis? Based upon कि जो जीन म्यूटेटेड हुआ है, जिस जीन में म्यूटेशन आ गई है, या जिस एलील में बेटा म्यूटेशन आ गई, क्या वो आपके सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है या फिर ऑटोसोम के ऊपर? बिकॉज वी नो बेटा कि हमारी बॉडी में दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स। अगर बेटा ये म्यूटेशन आपके सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर आ गई है, तो मैं कहूंगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। और हमारे सिलेबस में बेटा जो टॉपिक या जो पार्ट है इस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसका, दैट इज एक्स लिंक्ड। वाई लिंक्ड भी होते हैं, एक्स वाई लिंक्ड भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में वी आर ओनली हैविंग व्हाट? एक्स लिंक्ड रिसेसिव टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब बेटा अगर जीन म्यूटेशन आपके ऑटोसोम के ऊपर आ जाती है, तो मैं कहूंगा उस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डिस्कशन को बेटा थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, तो वी नो कि हम में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, लेकिन हमारे सिलेबस में वी आर हैविंग ओनली एक्स लिंक्ड व्हाट? रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो बेटा याद रखेंगे, ये जो आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर हम फीमेल्स की बात करें, वी ऑल नो बेटा कि ये जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। वाले जब हम मेल्स की बात करते हैं, मेल्स में बेटा वी हैव गॉट ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। नो बेटा फीमेल के केस में इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स को लेके तीन तरह के बेटा आपको जीनोटाइप्स याद रखने। फॉर एग्जाम्पल ये वाली फीमेल जो है, फर्स्ट कंडीशन, इस कंडीशन में इसके ऊपर ये वाला जीन जो है, इसके दोनों एलील्स क्या हैं? नॉर्मल हैं।
मतलब ये म्यूटेट नहीं हुए हैं। वायलेंस बेटा ये वाला एक्स क्रोमोसोम विच इज फ्रॉम, लेट मी से दिस इज फ्रॉम फादर, दिस इज फ्रॉम मदर, सो ये जो फादर से बेटा इस फीमेल में एक्स क्रोमोसोम आया है, लेट मी से इट्स नॉर्मल, वाइल एज जो बेटा ये मदर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, इसके ऊपर ये डिफेक्टिव अलील है। डिफेक्टिव अलील मींस कि इस अलील में, इस जीन में बेटा आपकी म्यूटेशन आ गई है। वाल ऐसे जो थर्ड कंडीशन है, ये थर्ड फीमेल बेटा, इसका जो फादर से एक्स क्रोमोसोम आया, लेट मी से इसका अलील भी, इसका जीन भी म्यूटेटेड है, और यहां पे बेटा ये जो मदर से आपका ये एक्स क्रोमोसोम आया, इसमें भी आपको क्या देखने को मिला, इसके अलील्स भी डिफेक्टिव हैं। सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेटे याद रखें, इसमें जो म्यूटेटेड अलील होता है, या मैं कहूंगा ना डिफेक्टिव अलील या डिफेक्टिव जीन जो होता है, दैट्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। नाउ फीमेल को लेके तीन तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं। ये वाली फीमेल तो नॉर्मल होगी, बिकॉज दोनों अलील्स बेटा, दोनों जीन्स या दोनों अलील्स या एक जीन, उसके दोनों अलील्स दे आर प्रेजेंट इन द डोमिनेंट फॉर्म, मतलब वो एक्सप्रेस करेंगे, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। क्लियर? वायलेंस इस वाली कंडीशन में एक तो आपको नॉर्मल दिखने को मिला, एक डिफेक्टिव है, लेकिन बेटा याद रखना इस तरह की फीमेल में ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर के सिम्पटम्स अपीयर नहीं होंगे। तो इस तरह की फीमेल को हम कहेंगे शी इज अ कैरियर फीमेल। व्हाई कैरियर फीमेल बेटा? बिकॉज ये फीमेल, ये जो आपका म्यूटेटेड एक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग डिफेक्टिव जीन है, इट कैन ट्रांसफर इट इक्वली, इक्वल चांस से मेल में भी इनहेरिट कर सकती है, सन में भी इनहेरिट करेगी, फीमेल में भी इनहेरिट करेगी। दैट्स द रीजन बेटे वी कॉल इट एज अ कैरियर मदर। वायलेंस इस वाली कंडीशन में हमने देखा कि दोनों अलील्स आपके एक जीन के म्यूटेटेड हैं, तो मैं कहूंगा बेटा दिस फीमेल इज गोइंग टू बी इफेक्टेड, मतलब इसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है इसके सिम्पटम्स अपीयर होंगे। Whereas जब मेल्स की बात करेंगे, मेल्स में वी नो बेटा वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। क्लियर सी बात? तो इस एक्स क्रोमोसोम को लेके दो जीनोटाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं। ये दो जीनोटाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं, या तो बेटा इसके ऊपर जो आपका जीन होगा वो नॉर्मल होगा, या बेटा इसके ऊपर डिफेक्टिव होगा। दैट मींस अगर बेटा यहां पे ये वाला मेल है, क्लियर, इसको अगर फोकस करेंगे, ये होगा नॉर्मल, और ये वाला जो होगा इट विल बी व्हाट, डिजीज्ड। दैट मींस इस डिस्कशन में हमने ये देखा कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जब हम देखते हैं, क्लियर सी बात, ये एक्सप्रेस होंगे, क्लियर सी बात, इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, लेकिन बेटा किसमें? फीमेल्स में। So important point you have to remember that X-linked recessive genetic disorders females में express होते हैं कब? In homozygous recessive condition, while as बेटा जब males को देखते हैं, males में because males are hemizygous, इनमें एक ही X क्रोमोसोम है, so इसमें ये disease express होंगे अगर जो जीन आपके X क्रोमोसोम के ऊपर होता है बेटा, अगर इसमें म्यूटेशन आ गई। Now बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नीट में भी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है, X-linked recessive जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बेटा याद रखेंगे कि इसमें कैरियर्स जो होती हैं, ओनली फीमेल्स आर कैरियर्स, ओनली फीमेल्स कैन बी कैरियर्स, व्हाइल एज मेल्स आर नेवर कैरियर्स। वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखें बेटा कि मेल्स आर मोर प्रोन, आर मोर कॉमनली एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स किन इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करते हैं? तो मेल्स को करते हैं। क्लियर सी बात? तो ये दो पॉइंट्स हैं कि मोर कॉमनली ये वाले डिजीजेस किन में एक्सप्रेस होते हैं? इन मेल्स। और इस वाली कंडीशन में मेल्स आर नेवर कैरियर, या तो नॉर्मल होंगे या फिर डिजीज्ड होंगे। व्हाइल एज इस कंडीशन में क्या होगा? फीमेल कैन बी कैरियर और इट कैन बी व्हाट, इफेक्टेड। क्लियर सी बात? तो ये तो रही बात बेटा किसकी? आपके सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। देखा हमने यहां पे कि फीमेल्स में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं। Now we are talking about what autosomal recessive genetic disorders, autosomal recessive genetic disorders। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान के चले बेटा मेरा एक ऑटोसोम होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इस ऑटोसोम के ऊपर लेट मी से दिस इज अ पर्टिकुलर जीन, दिस इज अ पर्टिकुलर जीन, आई कैन से कि ये हमारा एक फंक्शनल जीन है। क्लियर सी बात? अब दो या तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेट मी रिप्रेजेंट दिस जीन एज कैपिटल ए। सो बेटा पहली कंडीशन कैपिटल ए, मतलब लेट मी से क्रोमोसोम नंबर 2 की बात कर रहा हूं। ये जो पैटर्नल या फादर से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 2 है और मदर से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 2 है, इसके ऊपर बेटा जो दोनों अलील्स हैं दे आर प्रेजेंट इन देयर नॉर्मल सीक्वेंस, मींस दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज द प्रोटीन व्हिच विल परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन।
वाइल एस बेटा दूसरी कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि एक अलील बेटा नॉर्मल है, एक अलील म्यूटेटेड है। एंड थर्ड पॉसिबल कंडीशन विच कैन अराइज इज कि दोनों अलील्स क्या है, म्यूटेट हो गए। क्लियर सी बात। सो इस वाली कंडीशन में ये जो इंडिविजुअल होगा बेटा, हम कहेंगे ही आर शी इज गोइंग टू बी डिजीज्ड, ही आर शी इज गोइंग टू बी व्हाट, डिजीज्ड। वाइल्स ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन कौन सी, ये वाली कंडीशन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। इस कंडीशन में हम कहेंगे बेटा कि ये वाला इंडिविजुअल होगा कैरियर। ना बेटा यहां पे देखिए मैंने कहा कि एक्स लिंक्ड में केवल फीमेल्स कैन बी कैरियर्स, लेकिन वी नो बेटा क्रोमोसोम नंबर 2 जैसा मेल्स में वैसा फीमेल्स में। दैट मींस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहां पे ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स में देखा कि यहां पे बेटा बोथ मेल्स as well as females, both males as well as females can be carriers, can be what, carriers. Clear? और यहां पे आपने ये देखा कि मेल तो कभी भी कैरियर नहीं होता, यहां पे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बिकॉज ऑटिज्म वही फीमेल में बेटा वही मेल में भी। क्लियर पर्सन, क्लियर बात है। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं बेटे, एग्जांपल आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर की याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा मैं बात करूं किसकी, कलर ब्लाइंडनेस की, बात करूं, कलर ब्लाइंडनेस। Color blindness is an example of what? It is an example of X-linked recessive genetic disorder. क्लियर सी बात। यहां पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं बात करूंगा सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर में बेस्ट एग्जांपल यू विल रिमेंबर इज सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। क्लियर सी बात। सो कलर ब्लाइंडनेस is an example of what? X-linked recessive genetic disorder, while sickle cell anemia is an example of what? Autosomal recessive genetic disorder. Okay beta, next we are having to discuss the inheritance pattern of color blindness. So color blindness के बारे में we all know कि it's an example of X-linked recessive genetic disorder. X-linked recessive genetic disorder है बेटा, तो दैट मीन्स कि कलर ब्लाइंडनेस के होने के चांसेस मेल्स में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। नो डाउट कि फीमेल्स भी इस डिजीज से सफर करती हैं, प्रोवाइडेड कि उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन कॉरस्पॉन्डिंग टू कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये म्यूटेटेड हो। क्लियर बात। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बेटा याद रखेंगे, जो पेशेंट्स आपके कलर ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं तो यूजुअली सर्वाइव। क्लियर सी बात है। हाँ, इनमें जो डिफेक्ट होता है वो ये, इनमें जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, कलर ब्लाइंडनेस या इस कंडीशन में जो इनके कून सेल्स इनके रेटिना में होते हैं दोज बिकम नॉन फंक्शनल। वो क्या बन जाते हैं? नॉन फंक्शनल। और मैं कह सकता हूं दोज बिकम डिफेक्टिव। वाई? बिकॉज एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन था जो आपके इन कून सेल्स को फंक्शनल बनाता था वो डिफेक्टिव हो गया। क्लियर सी बात। सो जब ये जीन बेटा, ये जब कून सेल्स डिफेक्टिव बन गए, ये इंडिविजुअल्स अब क्या करेंगे? दे वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स। मोर इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि रेड और ग्रीन कलर में ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्लियर सी बात। और रेड एंड ग्रीन एसोसिएटेड कलर्स, एक और तरह का भी बेटा कलर ब्लाइंडनेस होता है, दैट्स कलर ब्लाइंडनेस जिसमें आपको ग्रीन ब्लू कलर जो होते हैं उनका परसेप्शन नहीं होता, लेकिन that's not an example of what X-linked recessive genetic disorder. क्लियर सी बात है। तो चले जी अब इसकी इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने के लिए मैं यहां पे लूंगा मदर। क्लियर सी बात, मदर, और यहां पे मैंने लिया फादर। फॉर एन एग्जाम्पल जो मदर है बेटा, लेट मी से मदर के जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम्स में से जो एक एक्स क्रोमोसोम है इसके ऊपर नॉर्मल जीन है और एक जो है इसके ऊपर है डिफेक्टिव जीन। मतलब मदर इज अ कैरियर। वाई? बिकॉज इसमें ये 2 जीन्स जो है एलील्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। वाइल एज बेटा जो मेल है, लेट मी टेक दैट मेल इज अ नॉर्मल। मेल इज नॉर्मल। मतलब कहने का ये हुआ
कि मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है उसका जो जीन है वो म्यूटेट नहीं हुआ। सो जिस टाइम पे गैमेटोजेनेसिस होगा, यहां से जो दो एग्स बनेंगे, एक एग में बेटा एक सेट ऑफ ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम, और जो दूसरा एग बनेगा उसमें एक सेट ऑफ ऑटोसोम्स का और एक दूसरा एक्स क्रोमोसोम। लेकिन याद रखेंगे कि ये जो मदर है ये तो आपकी क्या थी, कैरियर। मदर वाज व्हाट, कैरियर। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडीशन में ये एक्स क्रोमोसोम वो नॉर्मल होगा और ये वाला जो है इट विल बी हैविंग द डिफेक्टिव जीन। सो ये गैमीट्स बन गए, किसमें, मदर में, एग्स बन गए। अब देखते हैं मेल्स में क्या होगा। जिस टाइम मेल्स में गैमेटोजेनेसिस होगा, सो जो स्पर्म्स बनेंगे, ये मान के चले एक स्पर्म, इसमें एक ऑटोसोम हैविंग दिस एक्स क्रोमोसोम, लेकिन द एक्स क्रोमोसोम बेटा इट कंटेन्स नॉर्मल जीन, मतलब कि इसमें जीन म्यूटेशन नहीं हुए है। और जो दूसरा स्पर्म है इसमें ये एक सेट ऑटोसोम्स का, एंड दिस इज अवर वाई क्रोमोसोम। क्लियर सी बात। नाउ अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि ये जो आपके गैमेट्स बने किस तरीके से ऑफस्प्रिंग्स में इसका इनहेरिटेंस होगा। जिस टाइम पे बेटा ये वाला स्पर्म जो है इस एग को फर्टिलाइज करेगा, क्लियर सी बात, और जिस टाइम पे ये वाला स्पर्म जो है, ये वाला स्पर्म जब इस वाले एग को फर्टिलाइज करेगा, उस टाइम के ऊपर मैंने बात की इस स्पर्म के बारे में पहले, तो इसका मतलब ये हुआ यहां से जो जाइगोट बनेगा उसमें ये हो गए आपके ऑटोसोम्स और ये हो गए आपके एक्स क्रोमोसोम्स। अब इन एक्स क्रोमोसोम्स में से जो एक्स क्रोमोसोम बेटा मदर से आया है दैट्स नॉर्मल, और जो फादर से आया वो भी क्या है, नॉर्मल। क्लियर सी बात। इसका मतलब ये हुआ कि इस जाइगोट से जो फीमेल बनेगी उसमें दोनों जीन्स आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल हैं, तो ये फीमेल जो है शी इज गोइंग टू बी व्हाट, नॉर्मल। शी इज गोइंग टू बी व्हाट, नॉर्मल, मतलब इसमें कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन एराइज नहीं होगी। ये मान के चले बेटा जब यही स्पर्म इस वाले एग को फर्टिलाइज करेगा, ये तो अपने ऑटोसोम से ये एक एक्स क्रोमोसोम बेटा जिसके ऊपर आपको डिफेक्टिव जीन दिखने को मिला, डिफेक्टिव जीन विच इज फ्रॉम एग, एंड दिस इज द एक्स क्रोमोसोम विच इज फ्रॉम द स्पर्म। क्लियर सी बात। और स्पर्म में आपको दिखने को मिला कि यहां पे नॉर्मल है। नॉर्मली हम पहले नॉर्मल लिखते हैं फिर डिफेक्टिव यहां पे अंडरस्टैंड कर लें। तो यहां पे ये जो फीमेल बनेगी, बिकॉज ये जाइगोट जो है ये भी तो फीमेल में कन्वर्ट होगा, और ये फीमेल में आप देख रहे हैं एक जीन आपका, एक अलील आपका नॉर्मल है, एक बेटा यहां पे डिफेक्टिव है। दैट मींस ये वाली फीमेल जो होगी बेटा ये हो जाएगी कैरियर, ये हो जाएगी कैरियर। वाइल जिस टाइम पे ये वाला स्पर्म इस एग को जब फर्टिलाइज करेगा, नाउ दिस स्पर्म फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेस दिस एग, दिस स्पर्म सेकंड फर्टिलाइजेस दिस एग, तो वहां से जो कंडीशन एराइज होगी, चले यहां पे चार्ट बनाते हैं। ये वाला एग इज बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय दिस स्पर्म, सो जो जाइगोट यहां पे बनता है उसमें 2a प्लस x एंड y, लेकिन जो आपका एक्स क्रोमोसोम है बेटे इट कैरीज व्हाट, नॉर्मल अलील। क्लियर सी बात। दैट मीन्स ये वाला जो मेल है इसमें आपका एक्स क्रोमोसोम जो एक है इसके ऊपर नॉर्मल अलील है, तो ये जो मेल होगा बेटा ये मेल यूजुअली क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। वाइल एज जिस टाइम पे ये वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा, इस एग को फर्टिलाइज करेगा, इस एग को फर्टिलाइज करेगा, तो यहां से जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट का जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी दिस एक्स क्रोमोसोम व्हिच इज फ्रॉम एग, इट कैरीज अ डिफेक्टिव अलील, इट कैरीज अ डिफेक्टिव जीन, एंड दिस इज वाई। दैट मीन्स बेटा ये भी तो मेल बना, ये भी मेल बना। क्यों? बिकॉज इसमें आपको वाई क्रोमोसोम दिखने को मिलता है, लेकिन ये वाला मेल जो है बेटे इसमें एक्स क्रोमोसोम जो है इट कैरीज द डिफेक्टिव एलील। दैट मींस ये मेल जो है ये आपका बनेगा कलर ब्लाइंड। ये क्या बनेगा, कलर ब्लाइंड। He will be suffering from what, color blindness। क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जब एक मदर हु इज ए कैरियर एंड फादर हु इज नॉर्मल, क्लियर सी बात, इनमें इनहेरिटेंस पैटर्न कलर ब्लाइंडनेस का किस तरीके से होगा, तो मैं कहूंगा कि जितनी भी फीमेल्स बनी ऑल्दो बट इट्स कैरियर, लेकिन कैरियर तो नॉर्मल होती है। क्लियर, कैरियर नॉर्मल होती है, लेकिन ये आगे जाके अपने ऑफस्प्रिंग्स में ये डिफेक्टिव अलील इक्वली क्या कर सकती है, 50% प्रोबेबिलिटीज है, मेल में करेगी, फीमेल में चांसेस हैं कि ये वहां पे ये इनहेरिट करे। क्लियर। तो फीमेल्स जितनी भी बनी, दोज ऑल आर नॉर्मल, दोज आर ऑल नॉर्मल फिनोटिपिकली, लेकिन जीनोटिपिकली हम कहेंगे कि एक फीमेल या 50% ऑफ फीमेल्स दोज आर व्हाट, दोज आर नॉर्मल, whereas 50% फीमेल्स दोज आर कैरियर्स। while as बेटा जब हम मेल्स की बात करेंगे, मेल्स में देखें ये मेल है, नॉर्मल है, ये मेल है, ये कलर ब्लाइंड बन गया, तो हम कहेंगे 50%
50% मेल्स जो इसमें होते हैं वो हो जाएंगे डिफेक्टिव या डिजीज्ड होंगे, डिफेक्टिव और डिजीज्ड, वाइल एज जो 50% मेल्स हैं वो होंगे आपके नॉर्मल। क्लियर सी बात। वाइल एज हम कह सकते हैं कि 100% फीमेल्स इस कंडीशन में क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन से बाकी कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यहाँ पे मदर को डिफेक्टिव बनाऊं, फादर को नॉर्मल बनाऊं, उस तरीके से इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होगा, यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन और दैट पोर्शन बाय योरसेल्फ। क्लियर। तो इसके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया कि व्हाट वी मीन बाय और व्हाट डिस्कस द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कलर ब्लाइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज द सिकल सेल एनीमिया। सो नॉर्मली बेटा यहां पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो अपनी नॉर्मल आरबीसीज होती हैं, नॉर्मल आरबीसीज तो स्फेरिकल होती हैं, सर्कुलर होती हैं, बाय कनकेव सरफेस होता है इनका। क्लियर सी बात। अब इस सिकल सेल एनीमिक कंडीशन में होता क्या है, ये जो आपकी आरबीसी थी, ये जो हमारी बेटा नॉर्मल आरबीसीज होती है, ये नॉर्मल आरबीसीज का शेप चेंज हो जाता है और शेप चेंज होने की वजह से दे बिकम इलोंगेटेड और सिकल शेप्ड, रीजन क्या है, काज क्या है, अभी देखेंगे। सो इस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें हमारे नॉर्मल आरबीसीज की शेप बेटा कैसी बन जाती है, एक तो ये इलोंगेटेड बन जाते हैं, इलोंगेटेड के साथ साथ हम कहेंगे सिकल शेप्ड बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। So this is what happens actually in the sickle cell anemia। और यहीं पे याद रखेंगे कि sickle cell anemia is actually an example of autosomal recessive genetic disorder। क्लियर सी बात है, autosomal recessive genetic disorder की एग्जाम्पल है। अब बेटे नॉर्मली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, नॉर्मली प्रॉब्लम जो होती है, ये मान के चले मेरी एक ब्लड वेसल है, क्लियर सी बात, ये छोटी छोटी कैपिलरीज यहाँ से एराइज हुई, छोटी छोटी कैपिलरीज एराइज हुई। सो जब हमारे आरबीसीज की शेप, इन सिकल सेल एनीमिक कंडीशंस जब सर्कुलर थे, जब सिकल सेल एनीमिक कंडीशन हो गया, क्लियर सी बात, उसकी वजह से ये आरबीसीज जो हैं दे काज ओक्लूजन, ये यहाँ पे क्या कर जाते हैं, ये यहाँ पे इन छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू पास नहीं हो सकते। एज अ रिजल्ट जो ऑर्गन को बेटा ये वाली ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती थी, उनमें ब्लड सप्लाई अब सीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट अब ये पेशेंट जो है इसमें हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी एंड ही विल डाई। क्लियर। सो ये एक्चुअल में होता है कि हमारे सिकल सेल एनीमिया कंडीशन में नॉर्मल आरबीसीज दे चेंज इनटू सिकल शेप्ड। क्लियर सी बात। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि वी नो कि हमारी जो आरबीसीज होती हैं, नॉर्मल आरबीसीज का बेटा जो लाइफ स्पान होता है दैट्स व्हाट 120 डेज, एंड आफ्टर 120 डेज ये आरबीसीज जो होती हैं ये बोन मैरो से फिर से बनती हैं बाय प्रोसेस वी ऑल नो हीमोपायोसिस और इरिथ्रोपायोसिस। लेकिन बेटे ये वाली जो आपकी सिकल शेप्ड इलोंगेटेड सिकल शेप्ड आरबीसीज होती हैं, इनके स्ट्रक्चर की चेंज होने की वजह से या इस जेनेटिक डिसऑर्डर की कंडीशन में ये जो आरबीसीज आपकी बनी, इनका लाइफ स्पान बेटा, लाइफ स्पान क्या होता है, लेस होता है, लाइफ स्पेन लेस होता है, आई कैन से लेस देन 120, जिसकी वजह से ये वाली आरबीसीज का काउंट या आरबीसी काउंट बेटा, आरबीसी काउंट जो होता है ये डिक्रीज हो जाता है। सो जब आरबीसी काउंट डिक्रीज हुआ तो मैं कहूंगा ना कि इस वाली कंडीशन में जब सिकल सेल होता है, सिकल सेल एनीमिक कंडीशन में आरबीसी का काउंट कम हुआ तो मैं कहूंगा दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज व्हाट, एनीमिया। सो बेटा आपने यहां पे ये समझा कि जो सिकल सेल एनीमिया है ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसीज की शेप जो होती है चेंज हो जाती है। क्लियर सी बात। कैसे बन जाते हैं, सिकल शेप्ड, इसलिए हमने इसको सिकल सेल का नाम दिया। अब एनीमिया क्यों नाम देते हैं, बिकॉज ये जो आपकी ये सिकल शेप्ड आरबीसीज होती है इनका लाइफ स्पेन कम होता है। क्लियर सी बात। जिसकी वजह से अब इनमें या इन पेशेंट्स में क्या हो जाता है, आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है। सो वी कॉल्ड दिस genetic disorder as what, sickle cell anemia। Now coming towards an important part, that's its cause, that's it what it is cause कि सिकल सेल एनीमिया एक्चुअल में होता कैसे होता है। तो बेटे काज को याद रखने के लिए एक स्टार्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जहन में रखना है कि सिकल सेल एनीमिया होता है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, ड्यू टू व्हाट, पॉइंट म्यूटेशन। और मैं कह सकता हूं इट अराइजेस ड्यू टू सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। व्हाट डज इट मीन, अभी समझेंगे। तो बेटे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये मान के चले मेरा हीमोग्लोबिन है,
वी नो कि हमारे हीमोग्लोबिन में एक्चुअल में हमारे पास बेटा क्या होती है, जो ग्लोबुलिन चेन होती है वो बनी होती है किसका, या हीमोग्लोबिन में आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स दिखने को मिलती हैं. हीमोग्लोबिन कंटेन्स व्हाट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं इनमें आपने याद रखना है, इसमें 2 जो होती हैं वो 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 जो होती हैं वो कहलाती हैं बीटा चेन्स. दैट मींस 2 अल्फा चेन्स and 2 beta chains, beta polypeptide chains. अब बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसमें एमाइनो एसिड का नंबर 146, क्लियर सी बात, 2 हैं तो 2, इसमें 141, 2 चेन से पॉलीपेप्टाइड चेन तो 2 करेंगे. क्लियर सी बात, ये तो मैं नॉर्मल बता रहा हूं. क्लियर. अब याद रखने वाली बात है कि जो बीटा चेन बनाने का जीन होता है, जो बीटा चेन बनाने का जीन होता है, बिकॉज इट्स अ प्रोटीन, सो दैट मीन्स ऑब्वियसली इट विल बी कोडेड बाय व्हाट जीन. सो अल्फा चेन को बनाने का जीन बेटा हमारे क्रोमोसोम नंबर कहां पे, क्रोमोसोम नंबर हमारे क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर होता है. दैट मींस ऑटोसोम के ऊपर होता है. वाइल एज ये जो आपके बीटा चेन बनाने वाला जीन होता है, इट इज बेटा लोकेटेड ऑन आवर क्रोमोसोम नंबर 11. क्रोमोसोम नंबर 11. क्लियर सी बात है. और याद रख लेंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है बेटा, इसमें हमारा हीमोग्लोबिन तो बनता है, लेकिन इस हीमोग्लोबिन में जो एब्नॉर्मलिटी आती है दैट्स एक्चुअली बेटा इन इट्स बीटा चेन. इट्स इन इट्स व्हाट बीटा चेन. और इस बीटा चेन कोडिंग जो जीन होगा उस जीन में क्या होती है, पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि जब एक नाइट्रोजीनियस बेस जो होती है इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर नाइट्रोजीनियस बेस. क्लियर सी बात, तो हो गया सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन. क्लियर सी बात. ओके. सो अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. फॉर एग्जांपल ये मैं यहां पे नाम लूंगा, दिस इज फॉर एग्जांपल आवर क्रोमोसोम नंबर 11. This is our chromosome number 11, homologous pair of chromosome number 11. अब इस homologous pair of chromosome 11 के ऊपर this is बेटा for example beta gene जिसे मैं represent कर रहा हूं HBB से. So HBB actually means it's the gene which is present on our chromosome number 11. This is chromosome number या homologous pair of chromosome number 11. इसके ऊपर ये जो जीन आपने देखा बेटा, दिस इज एक्चुअली द जीन विच कोड्स फॉर बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ आवर हीमोग्लोबिन. क्लियर सी बात है. सो अब इस जीन की बेटा जब हम सीक्वेंस देखते हैं तो ये मान के चलें बड़ी सी सीक्वेंस है, लेकिन यहां पे GAG, यहां पे और नाइट्रोजनस बेस होंगी. दिस इज CTC. क्लियर सी बात, बिकॉज जीन है तो डीएनए होगा. क्लियर सी बात. सो ये मैंने इस जीन का क्या बनाया, सीक्वेंस पर मैंने फोक्स की बेटा यहां पे इन नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के ऊपर. क्लियर सी बात है. सो यहां से जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहां से बेटा जब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा. सो जिस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन होगा इस जीन से जो हमारा mRNA बनेगा, mRNA में बेटा इस सीक्वेंस को कोड करने वाला जो कोडान होगा दैट विल बी GAG. और यहां पे बाकी कोडान्स होंगे 146 कोडान्स होंगे. क्लियर सी बात. और इसके बाद इस mRNA का, ये तो अपना mRNA बना कहां से बना, ये बना बेटा हमारे बीटा जीन से जो कहां पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर. क्लियर सी बात. और यहां से अब आपने जहन में रखना है कि फ्रॉम दिस mRNA यहां से बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी. ये मान के चले जैसा हमारी NCERT के ऊपर ये देखे है 3, 4, 5, 6 एंड 7. यहां पे वैलिन होगा. क्लियर सी बात. यहां पे हिस्टिडीन होगा, यहां पे होगा आपका ल्यूसीन, थ्रियोनिन. ओके. यहां पे प्रोलीन एंड पोजीशन 6 जो आपका एमाइनो एसिड होगा, जो 6th पोजीशन के ऊपर एमाइनो एसिड होता है, लेट मी से दिस इज द 6th पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एमाइनो एसिड व्हिच इज कोडेड बाय दिस कोडॉन. तो यहां पे दिस इज एमाइनो एसिड नंबर 5, एमाइनो एसिड नंबर 4, एमाइनो एसिड नंबर 3, एमाइनो एसिड नंबर 2 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6.
क्लियर सी बात, एंड यहां से बाकी एमाइनो एसिड्स भी होंगी। सो इस तरीके से बेटा ये 146 एमाइनो एसिड्स की बनी हुई एक लॉन्ग चेन होती है, जिस चेन को हम कहते हैं बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर सी बात। लेकिन इंपॉर्टेंटली याद रखना आपको कि ये जो 6th पोजीशन के ऊपर जो आपका एमाइनो एसिड होता है बेटा नॉर्मल बीटा चेन में, दैट्स व्हाट अवर ग्लूटामिक एसिड। सो ग्लूटामिक एसिड को कोड करने वाला जो कोडॉन होता है, दैट्स व्हाट GAG। क्लियर सी बात। विच इज प्रेजेंट ऑन व्हाट, विच इज प्रेजेंट ऑन अवर दिस जीन सीक्वेंस, और ये जीन सीक्वेंस क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। नाउ इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब बेटा इस जीन में, किस जीन में, इस जीन में विच कोड्स फॉर आवर बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें बेटा बाय समहाउ म्यूटेशन आ गया। इसमें क्या आ गया? म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन कैसे आएगी? म्यूटेशन अभी देखते हैं। म्यूटेशन जब इसमें आ गई, क्लियर। सो म्यूटेशन आने की वजह से, म्यूटेशन जब आती है, म्यूटेशन बेटा सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, या मैं कहूंगा सिंपल लैंग्वेज में यहां पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है। एंड पॉइंट म्यूटेशन का मतलब कि एक नाइट्रोजनस बेस पेयर इज अल्टर्ड। क्लियर। तो इसी जीन सीक्वेंस को मिलूंगा, सो ये अपना रहेगा G, लेकिन जिस टाइम पे बेटा सिकल सेल एनीमिया जिस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एराइज होती है, उसमें एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थायामीन। दैट मींस नॉर्मल सीक्वेंस में यहां पे आपका एडेनिन होता है, लेकिन जिस टाइम पे बेटा इसमें म्यूटेशन आ जाती है, यहां पे आ जाएगा थायमीन, यहां पे आपका आ जाएगा गवानीन, यहां पे बाकी नाइट्रोजनस बेसिस, तो यहां पे साइटोसिन आएगा, यहां पे थायामीन आ गया, तो यहां पे बेटा आपका एडेनिन आएगा, यहां पे साइटोसिन। क्लियर सी बात। सो ये आपका बन गया म्यूटेटेड। दिस इज व्हाट म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से, जिस म्यूटेशन में आपने याद रखा एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय योर थायामीन। क्लियर। अब बेटा ये नहीं है कि ये जीन बना, यहां से आपका प्रोटीन नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। क्लियर सी बात। सो यहां पे सबसे पहले इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, एंड ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बेटा यहां से जो mRNA बनेगा, ये mRNA बना, इसके ऊपर कोडॉन्स होंगे, लेकिन यहां पे जो कोडॉन होगा विच कॉरस्पॉन्ड्स बेटा टू द 6th एमाइनो एसिड इन आवर बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट विल बी डिफरेंट। व्हाई? अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका mRNA बना, सो 6th कोडॉन जो होगा बेटा, दैट्स गोइंग टू बी व्हाट, दैट्स गोइंग टू बी G, दैट्स गोइंग टू बी U, एंड दैट्स गोइंग टू बी व्हाट G। क्लियर सी बात। सो नॉर्मल कोडॉन देखें, बिकॉज यहां पे यह आपका जो सीक्वेंस है, यहां पे आपका नॉर्मल था थायामीन, यहां से तो आपका mRNA बनेगा, यहां पे था थायामीन, यहां पे एडेनिन आ गया, तो जो आपका mRNA बनेगा, तो mRNA में जो कोडॉन बेटा स्पेसिफिक टू दिस नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस आ गया, दैट विल बी दिस वन। So this is actually 6th codon. This is 6th codon. अब बेटे यहां से जो आपका देखें, यहां से जो हमारा क्या बनेगा, यहां से जो हमारा शाबाश पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। सो दिस विल बी द एमाइनो एसिड प्रेजेंट एट 6th पोजीशन। सो बेटा अभी कंपेयर करके देखना, इट्स 1 2 3 4 5, these are the amino acids, these are amino acids, यहां पे बाकी amino acids। तो बेटा यहां पे ये जो 6th पोजीशन के ऊपर amino acid हमारे नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में होता है, that's what glutamic acid। लेकिन यहां पे आपका जो कोडॉन होता है वो चेंज हो गया ड्यू टू दिस पॉइंट म्यूटेशन फ्रॉम GAG टू GUG। सो ऑब्वियसली बेटा यहां पे जो आपका एमाइनो एसिड अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में होगा, दैट वोंट बी ग्लूटामिक एसिड। सो इस केस में ये जो आपका GUG कोडॉन है, इट कोड्स बेटा फॉर वैलिन। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जिस टाइम पे ये 6th पोजीशन का कोडॉन GAG से GUG चेंज होता है, सो जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा बेटा उसमें 6th पोजीशन के ऊपर अब आपका ग्लूटामिक एसिड नहीं बल्कि क्या होगा, वैलिन। तो मैं कहूंगा बेटा कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में भी आपको 146 एमाइनो एसिड्स दिखने को मिलेंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि ऑन 6th पोजीशन ऑफ दिस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन we have got the valine, while as here we have got the glutamic acid. We know that कि amino acids जो होते हैं they are specific, इनकी different properties होती हैं। glutamic acid is a polar while as valine is a non-polar। so that means बेटा अब because of this abnormal amino acid present on the beta polypeptide chain, ये जो आपका बेटा polypeptide chain बनेगा, ये जो आपका beta polypeptide chain यहाँ पे बनता है, it is not normal। मैं कहूंगा ये बन गया abnormal।
एबनॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। क्यों? बिकॉज बाकी एमाइनो एसिड सेम लेकिन एक डिफरेंट, दैट्स व्हाट प्रेजेंट ऑन द 6th लोकेशन। अब बेटा सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है, सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स, नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स आफ्टर दिस पॉइंट म्यूटेशन इन दिस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन इट रिमेन्स सेम 146। लेकिन बेटा आपके हीमोग्लोबिन की यहां पे क्या हो जाती है, क्वालिटी चेंज हो जाती है। मतलब नॉर्मल से ये एबनॉर्मल बन गया। नॉर्मल में तो ये सीन होता है लेकिन एबनॉर्मल जब ये बन गया तो उसमें ये होता है। दैट्स द रीजन बेटा हम लिखते हैं सिकल सेल एनीमिया के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट that sickle cell anemia is actually what, it's a qualitative genetic डिसऑर्डर। वाई क्वालिटेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर? बिकॉज अभी हमने समझा कि क्वालिटेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर इसीलिए बिकॉज जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बेटा यहां पे बनी वो तो एबनॉर्मल बन गई, तो यही एबनॉर्मल आपकी बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन में होगी, तो बन गया ना अपना हीमोग्लोबिन व्हाट, इसका क्वालिटी चेंज होगी। क्लियर सी बात? सो सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तब कहता मैं जब आपका बीटा चेन बनता ही नहीं, विच इज अ केस विच हैपेंस इन द थैलेसीमिया, तो यहां पे क्वालिटी चेंज हो जाती है। सो इट्स ए क्वालिटेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर सी बात? सो दिस इज द काज और द मैकेनिज्म किस तरीके से आपका सिकल सेल एनीमिया एराइज होता है। नाउ नेक्स्ट बेटे जो आपने याद रखना है कि ये जो हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो आपका बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन इनकोडिंग जीन होता है, नॉर्मल कंडीशन में बेटा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एज HBA, और जब इसमें म्यूटेशन आ जाती है हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं HBS। क्लियर सी बात? सो एक जीन के दो एलील्स होंगे तो मैं लिखूंगा HBA। क्लियर सी बात? अब नॉर्मल नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। नेक्स्ट इज दैट कि अगर आपके इस जीन में म्यूटेशन आ गई तो लेट मी से कि म्यूटेशन आपके होमोलॉग स्पीयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक ही क्रोमोसोम्स में आ गई तो एक जीन या एक एलील तो नॉर्मल होगा लेकिन दूसरा एलील बेटा कैसे होगा, म्यूटेटेड, तो उसे मैं लिखूंगा किससे, HBS। याद रखना HBA मतलब मींस व्हाट, नॉर्मल, HBS मींस व्हाट, इट्स म्यूटेटेड। क्लियर? एंड थर्ड कंडीशन व्हिच कैन बी पॉसिबल इज दैट कि जब दोनों क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर 11 का होमोलॉग स्पीयर ऑफ क्रोमोसोम जो है, जब दोनों एलील्स बेटा इसके ऊपर म्यूटेटेड होंगे सो हम लिखेंगे HBS HBS। क्लियर? तो दिस इज एक्चुअली द जीनोटाइप व्हिच कैन वी हैव इन व्हाट, सिकल सेल एनीमिया के रिलेटेड। सो इस कंडीशन में देखें बेटा दोनों एलील्स जो हैं वो तो नॉर्मल है। दैट मीन्स इस कंडीशन में पेशेंट जो है या पर्सन जो है इसमें सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स या इसमें सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस ही नहीं। सो नॉर्मल is a normal individual, while इस कंडीशन में देखें this is in heterozygous condition, एक जीन तो नॉर्मल एक जीन म्यूटेटेड, तो हम कहेंगे बेटा ये वाले इंडिविजुअल्स चाहे मेल हो या फीमेल होंगे ये क्या कहलाते हैं, कैरियर्स। दीज आर व्हाट, कैरियर्स। तो इस जीनोटाइप वाला पेशेंट जो होगा विल बी अ कैरियर एंड देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी कि ये जो आपका ये म्यूटेटेड एलील है बेटा ये आगे जाके किसी ना किसी ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो जाए। क्लियर? ओके, देन दिस कंडीशन यहां पे हमने देखा कि जो दोनों एलील्स थे आपके बेटे वो म्यूटेट हो गए हैं, तो मैं कहूंगा ना इट इज होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। सो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो कहेंगे बेटा ये वाला इंडिविजुअल जो होगा ही विल बी सिकल सेल एनीमिक, इसमें सिकल सेल एनीमिया होगा, सिकल सेल एनीमिक होगा। इज दैट मच क्लियर? तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने सबसे पहले देखा कि सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है और इस कंडीशन में क्या होता है। इस कंडीशन में यूजुअली जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, जब ऑक्सीजन सप्लाई बेटा कम होगी, दिस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी ना, ऑक्सीजन सप्लाई जब कम होती है उस टाइम पे ये जो आपका एबनॉर्मल, दिस इज एडिशनल पॉइंट, एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना, मतलब किस कंडीशन में, जब आपका
आपका ऑक्सीजन क्या होगा, कम। उस टाइम पे बेटा ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है इट अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन जब इसकी हो जाती है तो इसी पॉलीमराइजेशन की वजह से अब हमारे आरबीसीज की जो नॉर्मल शेप हो जाती है फ्रॉम सर्कुलर बाइकनकेव शेप्ड, इट चेंज टू व्हाट, इट चेंज इनटू elongated सिकल सेल शेप्ड। तो दैट मीन्स एक पॉइंट आपने यहां पे ये समझा कि सिकल सेल एनीमिक पेशेंट्स में सिम्टम्स कब अपीयर होंगे, जब 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 ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगा, कम होगा, व्हेन देयर इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई। क्लियर? सो डन विद दिस पार्ट, डन विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट शॉर्ट नोट ऑन डाउनिस सिंड्रोम। डाउनिस सिंड्रोम के बारे में बेटा आपसे थोड़ा सा लिखा है, शॉर्ट नोट मतलब 2-3 लाइंस का क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि डाउनिस सिंड्रोम इज एक्चुअली इट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, दैट मींस एबनॉर्मलिटी और प्रॉब्लम इज लाइंग विद व्हाट, क्रोमोसोम्स। कौन से? आपके यूजुअली जो हमारा डाउनिस सिंड्रोम होता है, डाउनिस सिंड्रोम में बेटा आपने याद रखना है इट यूजुअली अराइजेस ड्यू टू दिस कंडीशन 2n+1। 2n+1 मतलब व्हाट, इसका मतलब होता है ट्राइसोमी। एंड ट्राइसोमी मतलब व्हाट, ट्राइसोमी का मतलब होता है बेटा जब आपके किसी एक पर्टिकुलर होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का एक एडिशनल क्रोमोसोम आपकी सेल में प्रेजेंट हो। दैट मींस अब एक क्रोमोसोम की आपकी 2 कॉपीज नहीं, नॉर्मली तो हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं। क्लियर? लेकिन ट्राइसोमी में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की 2 नहीं बल्कि कितनी, 3 कॉपीज होती हैं। कितनी बेटे? 3 कॉपीज। नाउ मैंने यहां पे कहा कि डाउनिस सिंड्रोम आई कैन से इट्स एन एग्जांपल ऑफ बेटा व्हाट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी। लेकिन किसकी? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ व्हाट? 21st क्रोमोसोम। मतलब कि अब एक सेल में, एक इंडिविजुअल में क्रोमोसोम नंबर बेटा जो 21 होगा उसकी 2 कॉपीज नहीं बल्कि कितनी होंगी, देयर विल बी 3 कॉपीज। और इस न्यूमेरिकल चेंज की वजह से या इस हाइपरप्लॉइडी की वजह से या बेटा इस एनुप्लॉइडी की वजह से या इस एक क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने की वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस डाउनिस सिंड्रोम। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो आपके न्यूमेरिकल चेंज होती है बेटा इट अराइजेस ड्यू टू या दे अराइज ड्यू टू फेलियर ऑफ व्हाट, दे अराइज ड्यू टू फेलियर ऑफ disjunction failure of what, disjunction कब, ड्यूरिंग oogenesis। Why? Because याद रखना बेटा जेनेटिक्स में मोस्ट कॉमनली फीमेल्स होती हैं। क्या रीजन? फॉर अ पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब कि यहां पे फीमेल में जिस टाइम पे oogenesis होता होगा उस टाइम बेटा जो आपके 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, 21st क्रोमोसोम होता है, 21st क्रोमोसोम जो होते हैं दे विल नॉट सेपरेट, इसके क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होगी, जिसकी वजह से एक जो आपका गैमीट बनेगा उसमें एक 21st क्रोमोसोम या 21st क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, दूसरा जो बनेगा उसमें एडिशनल होगा। क्लियर सी बात? सो इस ट्राइसोमी की वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर एराइज होता है दैट इज सिंपली टर्म्ड एज व्हाट, डाउनिस सिंड्रोम। अब डाउनिस सिंड्रोम पेशेंट में बेटा आपने क्या याद रखना है, एक और पॉइंट, ये डाउनिस सिंड्रोम इज नॉट फाउंड ओनली इन मेल्स और फीमेल्स, बिकॉज वी नो कि ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेटा इक्वली ये हो सकते हैं, मेल्स में भी फीमेल्स, दैट मींस द पेशेंट कैन बी मेल और फीमेल। सो यहां पे ये मैंने एनसीईआरटी की एक एग्जाम डायग्राम ली है आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड हियर हमारी एनसीईआरटी के ऊपर बेटा इडियोग्राम भी देके है। इडियोग्राम मतलब कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन और बेस्ड अपॉन द डिक्रीजिंग साइज। क्लियर? और यहां पे एनसीईआरटी ने बेटा ये जो क्रोमोसोम बनाए हैं, क्रोमोसोम कंप्लीमेंट, इसमें आपके 3 क्रोमोसोम्स देखे, कौन से? 21। क्लियर? सो इसकी वजह से बाकी जितने भी क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं दोज आर प्रेजेंट इन द पेयर्स, लेकिन ओनली एंड ओनली क्रोमोसोम नंबर 21 इसकी 3 कॉपीज प्रेजेंट है। अब बेटे जल्दी से इसके सिम्टम्स के ऊपर आ जाते हैं। तो जब सिम्टम्स हम इनके देखते हैं तो इनमें यूजुअली आपको क्या देखने को मिलता है, इनका ओपन माउथ होता है, माउथ इनका यूजुअली ओपन रहता है। क्लियर सी बात? इनकी टंग जो होती है दे हैव द प्रोट्रूडिंग टंग मतलब जुबान थोड़ी सी बाहर निकली, तो मोर इंपॉर्टेंटली इनकी टंग में बेटा आपको एक फ्लो दिखने को, दैट मींस डाउन सिंड्रोम पेशेंट में आपको कैसी दिखती है, फ्रोवर्ड टंग दिखने को मिलती है, फ्रोवर्ड टंग दिखने को मिलती है।
टंग दिखने को मिलती है, माउथ इनका यूजुअली ओपन होता है, क्लियर सी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में बेटा आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पाल्मर क्रीज दिखने को मिलेगी जो हॉरिजॉन्टली रन करती है, जिसको कभी कभार हम सैमिनन पाल्मर क्रीज भी कहते हैं, क्लियर सी बात। सेकेंडली एनसीईआरटी ने ये भी यहां पे मेंशन किया दैट मैनी लूप्स प्रेजेंट ऑन द फिंगर टिप्स, क्लियर सी बात। इनकी ओब्लिकली आईज होती है जिसके ऊपर आपको फोल्ड्स दिखने को मिलते हैं, एंड दिस कंडीशन इज एपिकैंथस। इस तरह की आईलिड्स को हम कहते हैं एपिकैंथस आईज होती हैं इसमें, ठीक है। फ्लैट बैक ऑफ हेड, ठीक सी बात है। ब्रॉड फेस होता है इनका, ब्रॉड फेस होता है, क्लियर। देयर आर व्हाट बिग रिंकल्स ऑन द टंग, क्लियर। एंड मोर इंपॉर्टेंटली बेटा जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं ना, इनकी डेथ होती है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस लाइक पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, क्लियर सी बात है। सो दिस फॉर्म्स द मेन बेस जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम की पेशेंट्स में क्या होती है, डेथ होती है। Next we are given the P degree एनालिसिस, क्लियर सी बात। सो P degree एनालिसिस एक्चुअल में है क्या? P degree एनालिसिस बेटा देखें, जैसे हम प्लांट्स में किसी भी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, हम ट्राइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, क्लियर सी बात। लेकिन दैट कंडीशन इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमंस। व्हाई? द रीजन इज दैट कि ह्यूमंस का एक तो लाइफ स्पेन काफी इलोंगेटेड होता है एज कंपेयर टू द प्लांट्स। So the first concept. Second concept is that कि in case of plants, because of their short lifespan, अगर हमें inheritance pattern किसी भी character की देखनी है, so we can easily trace out that. लेकिन humans में बेटा lifespan इतना elongated, तो एक character को अगर आपने इसका transmission inheritance pattern understand करना होगा, it's not going to be so much easy. So for that reason, what the scientists did, what the geneticists या molecular biologists did, they simply designed a simple technique, सिंपल तरीका, जिसको हम क्या कहते हैं, P degree एनालिसिस। सो P degree एनालिसिस कहेंगे हमें सिंपली ये एक ऐसा चार्ट होता है, द चार्ट विच इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स, डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्लियर। अब बेटे शॉर्ट में P degree एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए वी हैव गॉट लॉट ऑफ रूल्स, लेकिन जो रूल्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं उनको नहीं बताएंगे, सिंपल वो छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे, रूल्स नहीं कहेंगे, शॉर्टकट्स बताएंगे, जिनकी बेस के ऊपर बेटा आप सिंपली किसी भी P degree एनालिसिस चार्ट को, P degree चार्ट को देके कहेंगे कि किस तरह का आपका ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या किस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस पैटर्न एक्सप्लेन करता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनका इनहेरिटेंस पैटर्न कैन बी अंडरस्टूड बाय द P degree चार्ट। सो फर्स्ट रूल और फर्स्ट टिप, इट्स नॉट अ रूल, इट्स अ फर्स्ट टिप जो आपको ये P degree चार्ट को सॉल्व करने के लिए दिमाग में रखनी बेटा, वो ये, फर्स्टली यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो P degree चार्ट आपको देखी है बेटा, क्या ये रिसेसिव टाइप का है, या फिर ये डोमिनेंट टाइप का है। दो शॉर्टकट्स बताऊंगा, क्या ये रिसेसिव टाइप का है या डोमिनेंट टाइप का। ये अगर आपने देख लिया तो आपका 50% बेटा जो आपका ये क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाता है। सेकंड, जब आपको ये पता चल गया कि क्या ये रिसेसिव है या डोमिनेंट, आफ्टर दैट ट्राई टू फाइंड आउट बेटा क्या ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहा है, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर के इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहा है, या ऑटोजोमल इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्सप्लेन करते हैं। सो ये दो पॉइंट्स में कहूंगा, अगर बेटे आपको याद रहे तो मैं कहूंगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अलावा दीज आर नॉट रूल्स, दीज आर जस्ट द शॉर्टकट्स। इसके अलावा बेटे हमारे पास बहुत सारे रूल्स होते हैं, लाइक वी हैव गॉट द जीनोटाइप ट्रेसिंग व्हिच इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्लियर केस, जो यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्लियर। सो अब पहला पॉइंट, सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक P degree चार्ट में कौन सा रिसेसिव होगा, कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा रिसेसिव और कौन सा डोमिनेंट। सो इस पॉइंट में बेटा आपने याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने दो पेरेंट्स लिए, ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट जनरेशन। इनके बेटा ये ऑफस्प्रिंग से, तो ये ऑफस्प्रिंग से, तो इसका मतलब हुआ ये बन जाएगी सेकंड जनरेशन। इजी,
अब जब इस जनरेशन में इस फीमेल का मैरिज इस मेल से हो गया तो इनके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, दीज आर फॉर एग्जांपल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर जनरेशन और कपल। तो मैं कहूंगा ना बेटा कि इस चार्ट में हमें कितने जनरेशंस देखें, 3 जनरेशन, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड एंड जनरेशन थर्ड। क्लियर सी बात, हमें पता करना है कि रिसेसिव है या डोमिनेंट, उसके बाद से देखेंगे कि सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल। सो बेटा याद रखना, अगर यहां पे कोई कैरेक्टर किसी कपल के ऑफस्प्रिंग्स में प्रेजेंट है लेकिन पेरेंट्स में नहीं है, What I said कि किसी जनरेशन में कोई कैरेक्टर है लेकिन उससे पहली वाली या बाद की जो जनरेशन है उसमें बेटा अगर वो कैरेक्टर दिखने को नहीं मिल रहा तो इस कॉन्सेप्ट या इस पॉइंट को हम कहते हैं स्किपिंग ऑफ जनरेशन। स्किपिंग ऑफ जनरेशन का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर जनरेशन में वो कैरेक्टर बेटा प्रेजेंट होता है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में, उस जनरेशन की जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें नहीं होता। तो सिंपल सा बेटा शॉर्टकट याद रखेंगे, वो चार्ट जो होगा वो ऑलवेज बेटा आपका किस तरह का होगा, रिसेसिव टाइप का होगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे मैंने 2 पेरेंट्स लिए, लेट मी से बेटा कि इस चार्ट में आपके जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल हैं लेकिन ऑफस्प्रिंग कैसे इफेक्टेड है। वाइलेस ये जो सेकंड जनरेशन है, ये कपल जो है इसमें आपका जो मेल है इट्स इफेक्टेड सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज, लेकिन इसकी जो थर्ड जनरेशन है, इसकी जो जनरेशन, इसकी जो प्रोजर्नी है उसमें ये कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा। That means यहां पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन बेटा प्रेजेंट है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन मतलब कि ये कैरेक्टर इस कपल के ऑफस्प्रिंग्स में एक्सप्रेस हुआ, इसने अपना इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाया, इसने खुद को एक्सप्रेस किया, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, मतलब फर्स्ट में स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो गया। Now talking about sex generation, ये मान के चलें कपल है, इसमें एक जीन बेटा खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई डिजीज काज कर रहा है, लेकिन इसकी जो ऑफस्प्रिंग से इसमें ये जीन एक्सप्रेस नहीं करा, बिकॉज बेटा ये जीन जिसकी वजह से ये मेल डिफेक्टिव है वो तो इसके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होगा, इनहेरिट होगा, लेकिन इनमें एक्सप्रेस नहीं करता। सो बेटा जब जीन एक्सप्रेस नहीं करते, या सिंपली कहेंगे जब स्किपिंग ऑफ जनरेशन आपको एक पी डिग्री चार्ट में दिखने को मिले 120% बेटा याद रखें ये होगा कैसा, आपका रिसेसिव टाइप। क्लियर सी बात, एक शॉर्टकट। दूसरे शॉर्टकट में कहूंगा ये मान के चलें दिस फॉर एन एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ मेल एंड हियर आई एम हैविंग अ फीमेल। ये क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर द पेरेंट्स। अब इन दो का जब मैरिज हुआ, क्लियर, यहां से जो ऑफस्प्रिंग्स आए, लेट मी सी कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स यहां से आए, ये ऑफस्प्रिंग्स इनके कुछ ऐसे होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल पहला ऑफस्प्रिंग इनका मेल है, दूसरी बेटा इनमें फीमेल है। फर्स्ट इज द फीमेल, सेकंड इज मेल एंड थर्ड इज ऑल्सो व्हाट, सन। क्लियर। अब बेटे याद रखना, फॉर एन एग्जाम्पल ये जो आपका मेल है, ये जो हमारा मेल है यहां पे, ये जो मेल है इट इज व्हाट इफेक्टेड, मेल इज व्हाट इफेक्टेड। सिमिलरली फीमेल यहां पे हम देखेंगे, यहां पे ऑल्सो दिस फॉर एग्जाम्पल दिस डॉटर इज ऑल्सो इफेक्टेड। तो समझे ना बात बेटा, आप यहां पे समझें बात आप यहां पे कि इस कंडीशन में ये मान के चले पहली जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, या चले एक और तरीके से दिखाऊंगा मैं यहां पे, ये मान के चले ये इसका मैरिज से, ये इसके ऑफस्प्रिंग से, 2 ही ऑफस्प्रिंग से। क्लियर सी बात। अब देख के बताएं मुझे क्या बेटा यहां पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन है। देखिए फर्स्ट जनरेशन में आपका फादर जो है इट्स इफेक्टेड, वाइल मदर बेटा इट्स व्हाट नॉर्मल, लेकिन इसी की जो सेकंड जनरेशन बनी, इसके ऑफस्प्रिंग्स में 3 ऑफस्प्रिंग्स में एक तो बेटा क्या है इफेक्टेड। तो मैं कहूंगा कि यहां पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट, स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट, मतलब कि पेरेंट्स में एक डिजीज था वो इनहेरिट हो गया इनटू ऑफस्प्रिंग्स, और इन 3 ऑफस्प्रिंग्स में एटलीस्ट बेटा वन हैज टू बी इफेक्टेड। क्लियर सी बात। वायलेस इस कंडीशन में देखो पेरेंट्स आर बेटा व्हाट अनइफेक्टेड, सो इनके ऑफस्प्रिंग्स भी क्या है अनइफेक्टेड। तो मैं कहूंगा जैसे पेरेंट्स थे वैसे ऑफस्प्रिंग्स थे। क्लियर सी बात। यहां पे कोई डिजीज एक्सप्रेस नहीं हो रही, तो इसके ऑफस्प्रिंग्स में भी डिजीज एक्सप्रेस नहीं हो रही। तो मैं कहूंगा ना बेटा कि यहां पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन एब्सेंट है, या मैं कहूंगा जैसे पेरेंट्स से वैसे ऑफस्प्रिंग से। अगर पेरेंट्स इफेक्टेड हैं, 2 में से 1 या 2, एनीथिंग कैन हैपन, यहां पे एटलीस्ट 1 हैज टू बी, 4 3 भी हो सकते हैं।
क्लियर। तो यहां पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन एब्सेंट, तो बेटा याद रखेंगे इस तरह का पी डिग्री चार्ट जो देखिए होता है, ऑलवेज अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिमाग में रखें, ये एक्सप्लेन करता है क्या, डोमिनेंट टाइप ऑफ पी डिग्री एनालिसिस, किसी डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करता है। इज दैट मच क्लियर? तो दो पॉइंट्स आपने याद रखने, अगर किसी पी डिग्री चार्ट में आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिखने को भी, या मैं कहूंगा बेटा जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे आपके ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, बिकॉज यहां पे एक ऑफस्प्रिंग क्या है, इफेक्टेड। क्लियर, यहां पे एक पेरेंट इफेक्टेड तो ऑफस्प्रिंग सब के सब नॉर्मल हैं। तो यहां पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन है तो कहेंगे ये किस प्रकार का बनेगा, रिसेसिव टाइप। वाइल एज यहां पे जब भी आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन बेटा दिखने को नहीं मिलेगी, स्किपिंग ऑफ जनरेशन एब्सेंट होगा। क्लियर सी बात, क्लियर, या जैसे पेरेंट्स वैसे ऑफस्प्रिंग्स। तो इस तरह की पेडिग्री को याद रखेंगे। दिस पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ व्हाट, डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। चलें जी जल्दी से अपने क्वेश्चंस की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा जो मैंने यहां पे लिया है, इट्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी द बाइबल ऑफ बायोलॉजी प्रोवाइडेड बेटे कि आप इस एनसीईआरटी को समझें। क्लियर सी बात कि व्हाट इज एनसीईआरटी सेइंग, नॉट लाइन बाय लाइन, बिटवीन द लाइंस। क्लियर, सो दिस इज पी डिग्री चार्ट ए एंड दिस इज पी डिग्री चार्ट पी। क्लियर, सो देखें दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन, सॉरी दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन एंड दिस वन इज द थर्ड जनरेशन। क्लियर सी बात, ये फोर्थ जनरेशन है, ये हमारी एनसीईआरटी में बेटे से थोड़ा elongate करके है। क्लियर, तो इसको भी ऊपर ले, तो इस पेडिग्री चार्ट में वी आर हैविंग ओनली व्हाट, 3 जनरेशंस। देखें यहां पे एक कैरेक्टर प्रेजेंट है। क्लियर सी बात, यहां पे एक कैरेक्टर प्रेजेंट है, यहां पे वो कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है किसमें, इनकी ऑफस्प्रिंग्स में। अभी तो हमने डोमिनेंट और रिसेसिव समझा, इसके बाद देखेंगे ऑटोसोमल या रिसेसिव। क्लियर, सो ये देखें फर्स्ट जनरेशन का फीमेल या मदर इज व्हाट इफेक्टेड, और जो इसकी ऑफस्प्रिंग है एक क्या है, इफेक्टेड। यहां पे पेरेंट्स है अनइफेक्टेड और जो इनकी ऑफस्प्रिंग है वो है अनइफेक्टेड। मतलब जैसे पेरेंट्स है वैसे ऑफस्प्रिंग्स, यहां पे बेटा जैसे पेरेंट वैसे ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर सी बात है। तो ये पेडिग्री चार्ट जो है बेटा मैं कहूंगा कि इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन, स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज व्हाट, स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट, स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट। सो स्किपिंग ऑफ जनरेशन बेटा अगर एब्सेंट है तो मैं कहूंगा ना कि ये किस तरह का होगा, ये डोमिनेंट है। अभी हमें पता नहीं चला कि ये रिसेसिव है या ऑटोसोमल, लेकिन इतना तो पता चल गया ये डोमिनेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहा है। सेम बेटा नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां पे अगर आप देखेंगे दिस इज व्हाट, ये फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में अनइफेक्टेड, लेकिन इनकी जो सेकंड जनरेशन बनी इसमें एक इंडिविजुअल इज व्हाट इफेक्टेड। ये देखें बेटा पेरेंट्स अनइफेक्टेड लेकिन ऑफस्प्रिंग्स क्या है आपके यहां पे इफेक्टेड दिए गए हैं। क्लियर सी बात। सो इसमें हम कहेंगे कि सर यहां पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। सो स्किपिंग ऑफ जनरेशन बेटा अगर प्रेजेंट है ये रिसेसिव बन जाएगा कि डोमिनेंट बन जाएगा, स्किपिंग ऑफ जनरेशन है तो मैं कहूंगा इट इज रिसेसिव। It explains what? Inheritance of what? A recessive trait or recessive genetic disorder. अब नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है कि मैंने अभी आपसे कहा था कि पेडिग्री चार्ट को एनालाइज करने के लिए आपने 2 पॉइंट्स का, पहले या तो रिसेसिव है या डोमिनेंट पता करना है, सेकंड इज नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या ये सेक्स लिंक्ड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है या ऑटोसोमल को। इसको बेटा सॉल्व करने के लिए बस एक चीज याद रखना, ये मान के चले एक पेरेंट है, मेल है, ये मेल है बेटा, ये मेल है। क्लियर सी बात, मेल है, और यहां पे मैं ये एक इसकी डॉटर लूंगा, ये मैंने यहां पे इसकी डॉटर ली। क्लियर सी बात। If male is affected, if male is affected, if male is what? Affected, if male is affected, मैंने कहा if father is affected, father is what? Affected. अगर इस father affected है, अगर इस father की बेटा daughter भी affected हुई, मतलब What does this mean? इसका मतलब ये हुआ कि फादर जो था ये अपना जो ये डिजीज काजिंग जीन है ये इनहेरिट कर रहा है किसमें, इनटू इट इज डॉटर। सो व्हेन फादर इज इफेक्टेड और इस इफेक्टेड फादर की जो डॉटर है, डॉटर इज ऑल्सो व्हाट इफेक्टेड, डॉटर इज ऑल्सो व्हाट इफेक्टेड। सो इस तरह की इनहेरिटेंस पैटर्न को आई मीन से फादर टू अ डॉटर। सर आपने मदर क्यों नहीं लिया? बिकॉज बेटा मदर जो होती है, अगर हम सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें, डोमिनेंट वाले की या रिसेसिव की बात नहीं कर रहे, सेक्स लिंक्ड की बात करें, वो बेटा अपना एक्स क्रोमोसोम जो है वो इक्वली इनहेरिट करती है अपने डॉटर्स में भी, सन्स में भी। क्लियर। लेकिन फादर जो है वो अपना एक्स क्रोमोसोम बेटा इनहेरिट करता ओनली डॉटर। सो याद रखना अगर फादर बेटा इफेक्टेड होगा, डॉटर भी अगर इफेक्टेड दिखने को मिली, सो इस तरह की इनहेरिटेंस पैटर्न को हम कहते हैं
देखेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और जहां पे भी आपको पेडिग्री एनालिसिस में इस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न चाहे एक ही दिखने को मिले तो 100% बेटे याद रखना वो वाला पेडिग्री एनालिसिस जो होगा वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है इनहेरिटेंस ऑफर्ड ए सेक्स लिंक्ड ट्रेट। क्लियर सी बात। चले अभी अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमने अपने क्वेश्चन में बेटा ये तो देख लिया कि ये डोमिनेंट वाला है, ये रिसेसिव वाला है। क्लियर सी बात। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट क्या ये ऑटोसोमल है या रिसेसिव। देखें बेटा यहां पे कहीं पे भी आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखने को नहीं मिली। दैट मींस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न दिखने को नहीं मिली। आई मीन से डैड से डॉटर में कैरेक्टर या डिजीज इनहेरिट नहीं हो रहा। क्लियर सी बात। तो याद रखना ये होती है ऑटोसोमल। So ये पेडिग्री एनालिसिस ए जो है इट्स एक्चुअली बेटा एक्सप्लेनिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। वायलेंस ये वाली पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस अगर आप देखेंगे यहां पे भी बेटा आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मींस फादर अगर इफेक्टेड है इसकी डॉटर भी इफेक्टेड है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है तो ये वाला भी बेटा बन जाएगा ऑटोसोमल, लेकिन ऑटोसोमल है तो रिसेसिव। सो ये वाला पेडिग्री एनालिसिस बेटा चार्ट एक्सप्लेन कर रहा है इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए ऑटोसोमल रिसेसिव genetic disorder, and this is explaining what autosomal dominant genetic disorder. Got my point? चलें जी next example की ओर आते हैं। next example जो हमें यहाँ पे दे के है that's this one. So first of all try बेटा quickly to find out क्या ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट। देखें यहाँ पे skipping of generation is absent। why? देखें इस जनरेशन में one is affected, इसमें भी बेटा आपको affected दिखने को मिले, parent affected, offspring is also affected। that means बेटे इसमें skipping of generation is absent। skipping of generation absent है तो मैं कहूंगा ना ये हो जाएगा डोमिनेंट टाइप। ये चार्ट जो इट्स एक्सप्लेनिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या ये आपका सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल। देखें बेटा यहां पे फोकस करें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मैंने कहा था डैड टू डॉटर। देखिए यहां पे मदर इज अफेक्टेड, इट्स इक्वली एक्सप्रेसिंग बेटा इट्स इक्वली ट्रांसमिटिंग इट्स जीन इनटू डॉटर्स एंड सन्स, और यहां पे सन भी इफेक्टेड डॉटर बेटा, मतलब यहां पे इनहेरिटेंस पैटर्न की बात नहीं करेंगे। यहां पे देखें बेटा दिस इज द फादर व्हिच इज इफेक्टेड, और इस फादर का ये जो डॉटर्स हैं बेटा दो डॉटर्स दोज आर इफेक्टेड। क्लियर सी बात, दोज आर व्हाट इफेक्टेड। गॉट माय पॉइंट। दैट मींस बेटा ये वाला जेनेटिक डिसऑर्डर जो है क्लियर सी बात ये आपका ऑटोसोमल नहीं है, इट्स गोइंग टू बी व्हाट सेक्स लिंक्ड। व्हाई? बिकॉज़ इसमें एक्स क्रोमोसोम जो है ये म्यूटेट हो चुका है और ये एक्स क्रोमोसोम बेटा ये अपनी डॉटर में ही इनहेरिट करता है। क्लियर सी बात। दैट्स द रीजन कि इसके सन्स क्या इफेक्टेड नहीं होंगे। सो ये पेडिग्री एनालिसिस चार्ट जो है इट्स एक्सप्लेनिंग व्हाट, इट्स एक्सप्लेनिंग सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का जो डोमिनेंट होता है। सर डोमिनेंट क्यों कहा? सर बिकॉज यहां पे आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिस वन। जरा बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं, सबसे पहले लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि रिसेसिव है कि डोमिनेंट। देखें स्किपिंग ऑफ जनरेशन इसमें नहीं है बिकॉज कैरेक्टर इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। इसके ऑफस्प्रिंग्स में बेटा अगर देखेंगे तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन यहां तक अभी सेकंड जनरेशन तक एब्सेंट है। लेकिन जरा इस कपल के ऊपर फोकस करें, इसमें दो पेरेंट्स अनइफेक्टेड हैं, लेकिन इनके जो ऑफस्प्रिंग्स आई मीन से इन थर्ड जनरेशन में आपको यहां पे एटलीस्ट एक इंडिविजुअल तो इफेक्टेड दिखने को मिलता है, एक इंडिविजुअल आपको इफेक्टेड दिखने को मिलता है, लेकिन पेरेंट्स क्या है? अनइफेक्टेड। दैट मींस स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज यहां पे प्रेजेंट की एब्सेंट। लेकिन सर यहां पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस वाले केस में बेटा आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिखने को मिलता है। क्लियर सी बात। तो मैं कहूंगा इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी रिसेसिव, इट इज गोइंग टू बी व्हाट रिसेसिव। Why? Skipping of generation present. Now let's try to find out कि क्या बेटा ये आपकी dominant type of inheritance pattern है कि ये recessive तो बता दिया, sex linked है कि आपका ये ऑटोसोमल। देखें यहां पे पकड़ लिया पेडिग्री एनालिसिस को। क्लियर सी बात। यहां पे पेडिग्री एनालिसिस को आपने ये देखा कि पेरेंट के फादर से ये कैरेक्टर इज बीन इनहेरिटेड टुवर्ड डॉटर। मदर भी इफेक्टेड है बेटा, इसीलिए तो इसके जो सन्स है वो भी इफेक्टेड है, लेकिन फादर जो है ये अपना म्यूटेटेड या आप अपना डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम जो है ये डॉटर में इनहेरिट कर रहे हैं। सो मैं कहूंगा बेटा ये वाला जेनेटिक डिसऑर्डर जो है या ये वाला पेडिग्री इनहेरिटेंस जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है आपका एक्चुअल में एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव की डोमिनेंट,
X-linked recessive genetic disorder. So this was all in today's session. I hope beta you are going to expect questions from this portion. Stay blessed. Take care. Allah Hafiz.